যারা অন্যের পরাজয়ে আনন্দ পায় তারা মনুষ্যত্বের কাছে হেরে যায়। বইয়ের অঙ্কগুলো গরমিল হলে তা একটা সময় মিলিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু জীবনের অঙ্কটা একবার গরমিল হয়ে গেলে তা কখনোই মেলানো যায় না। বন্ধু একটাই হোক, তবে এমন হোক যাতে মুখের কথা নয়, মনের কথা বুঝতে পারে। যারা আসল ভালোবাসার মানে বোঝে তারা অবহেলা করে না, আগলে রাখে। প্রিয় মানুষটা যতক্ষণ পর্যন্ত সৎ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বা দুঃখ অমৃত মনে হয়। আর যখন রূপ পরিবর্তন করে, গিরগিটি রূপ ধারণ করে, তখন তার অমৃত বাণীও ডাস্টবিনে থাকা কীটের সমতুল্য। জীবনের সঙ্গী হিসেবে তাকেই চাই যে আমাকে পেয়ে দ্বিতীয় কারো কথা ভাববে না। প্রথম সম্পর্কের ভাঙনের পর যদি দ্বিতীয় সম্পর্কের সুযোগ আসে, তবে সেই মানুষটাকে না ফিরিয়ে একটা সুযোগ তাকে দেওয়া উচিত। যিনি রাতের পর সকাল দেন, তিনি কষ্টের পর সুখও দেবেন। যে একা থাকার স্বাদ পেয়ে গেছে একবার, সে আর সঙ্গী খোঁজে না দ্বিতীয়বার। একটি ভালো সঙ্গ, ভালো উপদেশ একটা জীবনকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। জীবন হচ্ছে কিছুটা আঁকা বাঁকা পথের মতো, কখন কোথায় গিয়ে বেঁকে যায় কেউ জানে না। ব্যথাগুলো খুব ব্যক্তিগত, প্রকাশ করে লাভ নেই। নিজের ভেবে বলবে যাকে, পরে আঘাত করবে সে। কি অদ্ভুত তাই না? মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় তাদের প্রিয় মানুষগুলোর কাছে। মনে কষ্ট থাকলেও মুখে হাসি নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, এটাই জীবন। কখনো তর্ক করে জিততে যাবেন না, এটা সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই না। যখন কেউ তোমার লাগের কোনো দাম দেয় না, তুমি বুঝে নিও ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে এবং তুমি তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে গেছো। একটা মেয়ের দোষ খুঁজে বের করতে চাইলে তার বান্ধবীদের কাছে মেয়েকে প্রশংসা করতে শুরু করো। প্রথম প্রেম শেখায় ভালোবাসা কি, শেষ প্রেম শেখায় জীবনটা কি। মৃত্যু কি সহজ, কিন্তু শব্দে আসে, অথচ মানুষ চিরকাল জীবন নিয়ে গর্ব করে যায়। তুমি যার কাছে যত বেশি আশা করবে, সে তোমাকে ঠিক ততটাই নিরাশ করবে। তোমার মন খারাপ যদি পৃথিবীর কারো হৃদয় স্পর্শ না করে, তবে হাসতে শিখে নাও। জীবন যুদ্ধে আমাদের লড়াইটা প্রিয়জনদের সাথে হয়ে থাকে, শত্রুর সাথে নয়। যার রাগ আর জেদ বেশি, তার জীবনে কেউ থাকতে চায় না। জীবনে অঠাপড়া থাকবে, সুখ দুঃখ থাকবে, তাই বলে পিছিয়ে যেতে নেই। দেখবে একটা সময় তুমি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সবাই তোমাকে গুরুত্ব দেবে। আমি আমার অতীত নিয়ে কখনো অনুতাপ করি না। আমার শুধু খারাপ লাগে এটা ভেবে যে আমি ভুল কারোর সাথে আমার জীবনের কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছিলাম। সবসময় নিজেকে উজাড় করে দিতে নেই, সবাই তার মূল্য দেবে না, অযথাই মন খারাপ হবে। আমাদের চোখের পানি যাকে একদম স্পর্শ করে না, আমরা তার জন্যই কাঁদি, পাগলের মতো কাঁদি। জীবনে যতই ভালো কাজ করো সবাই ভুলে যাবে, কিন্তু একটা মন্দ কাজ করো দেখবে রেকর্ড হয়ে যাবে। এটাই বাস্তবতা। কিছু অতীত এমনও থাকে যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আবার কিছু বর্তমান এমন আছে যা মানুষকে শেষ করে দিতে পারে। জীবনে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই, আসলে প্রতিটা মুহূর্ত মৃত্যুর মতোই সম্ভাবনাময়। পরিস্থিতি তাকে প্রতি মুহূর্ত বোকা বানাচ্ছে, তাকে আর আলাদাভাবে একটি ফুল বানানোর প্রয়োজন নেই। একজন মহান ব্যক্তিকে চেনা যায় ছোট ব্যক্তির সাথে তার ব্যবহার দেখে। কেউ যদি তোমার ভালোবাসার মূল্য না বুঝে, তবে নিজেকে নিঃস্ব ভেবো না, কারণ জীবনটা এত তুচ্ছ নয়। ভালোবাসা প্রতিশ্রুতিতে নয়, বিশ্বাসে টিকে থাকে। যেসব কাজে মানুষের কল্যাণ হয় তার প্রতিটা কাজে সর্বোচ্চ যত্নের সাথে করা উচিত। এক আকাশ সমান অনিশ্চয়তা তোমাকে পাওয়া না পাওয়ায়, তবে রোজ ভাবি তুমি আমার। এখন আর অবাক হই না মানুষের বদলে যাওয়া দেখে, বরং আগে থেকে নিজেকে সতর্ক রাখি। সীমাবদ্ধ ইনকামের মধ্যে যারা নিজেদের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, পৃথিবীতে তারাই সুখী। মন থেকে কথা বলা আর মন রাখার জন্য কথা বলা, এই দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য। সাফল্যের মতো ব্যর্থতাও এক একজনের কাছে এক এক রকম, কিন্তু ইতিবাচক মনোভাব থাকলে যে কোনো ব্যর্থতাও হতে পারে নতুন একটি শিক্ষা, যে শিক্ষা আবার নতুন স্বপ্ন নিয়ে শুরু করার অনুপ্রেরণা দেয়। কিছু কিছু বাণী নির্দিষ্ট কিছু মানুষের গায়ে লাগে, কারণ সেই বাণীর সাথে তার চরিত্র মিলে যায়। দুজন মানুষ একসাথে চললেই তাদের গন্তব্য এক হয় না। জীবনের কোনো এক পর্যায়ে এসে দেখবেন আপনি পুরোপুরি একা হয়ে গেছেন, একদম একা। প্রচন্ড মন খারাপেও ফ্যামিলি, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন কিংবা প্রিয় মানুষ কাউকে পাশে পাবে না, কাউকে না। অনেক বন্ধু বান্ধব আসবে জীবনে, কিন্তু কেউ চিরস্থায়ীভাবে পাশে থাকবে না। বসন্তের কোকিল হয়ে যে বা যারা আসবে তাকে কিংবা তার কাছে নিজের সবকিছু শেয়ার করে অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন। আর তারপর আবার সেই মানসিক অশান্তির যন্ত্রণা ঘিরে ফেলবে আপনাকে। একটা সময় আপনি নিজের অজান্তেই বড্ড একা হয়ে যাবেন, কোনো কিছু আর তখন ভালো লাগবে না। নিজেকে নিজের কাছেই অসহায় মনে হবে, নিজেকে অপরাধী মনে হবে। মনে মনে ভাববেন হয়তো আপনি ভুল আর তারাই সঠিক। মনে হবে আপনার কোনো ত্রুটি কিংবা দোষের কারণে সব হারাচ্ছেন। এমন একটা সময় আপনি পার করবেন যখন সামান্য একটু সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য
ব্যাকুল হয়ে থাকবে, মানসিক সাপোর্টের জন্য অস্থির হয়ে থাকবে, কিন্তু কারো কাছ থেকেই পাবেন না। পরিবার পরিজন আপনাকে ভুল বুঝতে শুরু করবে, আত্মীয় স্বজনরা আপনাকে দাম দিবে না, আগের বন্ধু বান্ধব গুলো আর তেমন খোঁজ খবর নেবে না আপনার। এই সময়টাই হচ্ছে খারাপ সময়, যে সময় সবকিছু প্রতিকূল অবস্থায় থাকে। জীবনে এমন সময় আসলে তখন একা বাঁচতে হয়, নিজেকে ভালোবাসতে হয়, সময় দিতে হয় নিজেকে, প্রার্থনা করতে হয়, মনে বিশ্বাস রাখতে হয়। মনে রাখতে হবে জীবনের সবচেয়ে কঠিন কষ্টগুলো নিজেকে ভোগ করতে হবে, জীবনের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধে একাই লড়তে হবে। বসন্তের কোকিল হয়ে জীবনে অনেকে আসবে যাবে, তবে আপনার অবস্থান থেকে আপনাকে एकाई सब परिस्थिति मुकाबला करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई शादीशुदा महिला आपको चाहती है या आपसे प्यार करती है या आपके साथ संबंध बनाना चाहती है, पर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वह महिला आपसे सच्चा प्यार करती है या नहीं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी न करें। जो महिलाएं संबंध बनाना चाहती हैं, तो महिलाएं इसके दौरान कुछ ऐसी हरकतें या इशारे करती हैं या फिर बातें कहती हैं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह शादीशुदा महिला आपको बहुत ही पसंद करने लगी है। और फिर महिला यह चाहती है कि आप उसके इन इशारों को समझकर आगे बढ़कर पहल करें। पर दोस्तों, हम में से ज्यादातर पुरुषों को या लड़कों को महिलाओं के इशारे समझ में नहीं आती है कि वह क्या चाहती है। लेकिन दोस्तों, चिंता न करें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि शादीशुदा महिला आपके साथ संबंध बनाना चाहती है तो वह आपकी ओर क्या क्या इशारे करती है। दोस्तों, ज्यादातर शादी के बाद वह पति पत्नी जिनमें लगाव कम हो जाता है। ऐसे में भी ज्यादातर महिलाएं दूसरे पुरुषों को भाव देने लगती हैं या दूसरे पुरुषों को पसंद करने लगती हैं। और वैसे तो कुछ शादीशुदा महिलाओं का फ्लर्ट करना या इशारा आम बात है, पर बहुत बार उनकी साधारण बातचीत को प्यार समझ लेना यह भी गलत है। वैसे तो आजकल प्यार करने की कोई उम्र नहीं देखी जाती है, पर फिर भी आप इसमें बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कोई शादीशुदा महिला आपसे प्यार करती है या नहीं करती है, तो आप उस महिला के इशारों से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक शादीशुदा महिला जब किसी पुरुष को बहुत पसंद करती है या प्यार करती है, तो महिला का व्यवहार उस पुरुष के प्रति बदल जाता है, यानी कि महिला का प्रेम उस पुरुष की ओर हो जाता है। परंतु महिला कभी भी खुद से उस पुरुष को यह नहीं बोल पाती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या है वे इशारे। नंबर 1, शादीशुदा महिला हमेशा आपसे आपकी गर्लफ्रेंड के विषय में पूछेगी। एक अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया है कि जब कोई शादीशुदा महिला आप में इंटरेस्टेड है या आपको प्यार करती है, तो वह आपसे हमेशा एक ही सवाल पूछेगी या यह जानना जरूर चाहेगी कि आपके जीवन में आपकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई जीवन साथी तो नहीं है और आप किसी महिला को पसंद तो नहीं करते हो, क्योंकि महिला आपसे यह सवाल बार बार पूछकर यह आपको यह एहसास करवाना चाहती है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई और नहीं है तो वह महिला आपकी जिंदगी में आना चाहती है। और वह आपको इस तरह का इशारा करेगी जिससे यह जताएगी कि वह आपको बहुत ही पसंद करती है। महिला आपको अपने हाथों से इशारे करेगी। एक स्टडी में यह पाया गया है कि महिलाएं अक्सर आपसी बातचीत के दौरान अपने हाथों से कुछ ऐसे इशारे करती हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वह क्या चाहती है। यदि कोई महिला आपको देखकर अपने हाथों को अपनी गर्दन या बाजू पर टच करे, तो यह उसका इशारा है कि आप उससे बात करने के लिए सबसे पहले पहल कर सकते हैं। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह अपने इशारों से ही आपको आकर्षित करने की कोशिश करती है, या फिर वह ऐसा इसलिए भी करती है क्योंकि वह आप में बहुत ही ज्यादा इच्छुक है या आपको प्यार करती है। नंबर 2, शादीशुदा महिला आपसे खुद बात शुरू करेगी। एक अध्ययन में यह साबित हुआ है कि जब शादीशुदा महिला आपको पसंद करने लगती है या फिर आपको प्यार करने लगती है, तो महिला खुद ही आपके पास आकर बात करना शुरू कर देगी और इसके साथ ही वह आपको देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आपको देखने को मिलेगी और वह महिला आपको कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिसे सुनकर आपको यह बिल्कुल समझ आ जाएगा कि वह महिला आपको पसंद करने लगी है, क्योंकि वह महिला चाहती है कि ऐसे वक्त पर आप हमेशा ही उससे बात करते रहे और इसके साथ ही आपका साथ महिला को बहुत ही अच्छा लगने लगता है और वह आपसे जब भी कोई बात करेगी तो आपकी नजरों से मिलाकर बात करेगी। इस दौरान महिला की में आपके लिए शर्म दिखेगी और अगर ऐसी हरकतें आपको बार बार देखने को मिले तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि वह महिला आप में दिलचस्पी लेने लगी है या आपको प्यार करने लगी है। नंबर 3, शादीशुदा महिला की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। एक स्टडी के मुताबिक अगर शादीशुदा महिला किसी से सच्चा प्यार करती है तो वह महिला उस पुरुष के करीब या नजदीक जाने की हर एक संभव कोशिश करती है।
और इस दौरान महिला की बॉडी लैंग्वेज को समझना बेहद जरूरी है। शादीशुदा महिला हर वक्त आपके नजदीक रहने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही वह महिला बात करते समय बार बार आपका हाथ पकड़े या फिर वह आपको बार बार छूने की कोशिश करे तो समझ लीजिए कि वह आपकी ओर आकर्षित है। वह आपसे प्यार करती है क्योंकि यह भी प्यार का एक इशारा है। नंबर 4, आपको किसी और के साथ देखकर जलन महसूस करेगी। एक अध्ययन में यह साबित हुआ है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से प्यार करता है और जब वह महिला किसी और पुरुष के साथ बातें करती है तो पुरुष को जलन महसूस होती है। ठीक वैसे ही जब आप किसी अन्य महिला या किसी के करीब होकर बात कर रहे हो तो शादीशुदा महिला को जलन महसूस होगी और यह भी हो सकता है कि कुछ देर तक वह महिला आपसे बात न करे या आप पर गुस्सा करे या फिर आपसे मुंह तक फेर ले। तो अगर आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं या कर रहे हैं तो आप यह समझ जाएं कि उसके दिमाग में आपको लेकर कुछ न कुछ चल रहा है और वह महिला आपकी ओर बहुत आकर्षित है या फिर आपसे प्यार करती है। नंबर 5, एक अध्ययन में यह पता चला है कि अगर कोई शादीशुदा महिला आपसे सच्चा प्यार करती है तो वह हर एक बात पर इश्कबाजी वाली टिप्पणी करेगी और वह इसके अलावा कुछ हंसी वाले चुटकुले सुनाकर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास भी करेगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप यह समझ जाएं कि महिला आपको सच्चा प्यार करती है और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। नंबर 6, महिला की आवाज में परिवर्तन देखें। एक स्टडी के अनुसार अगर शादीशुदा महिला आपको प्यार करती है तो महिला की आवाज पहले से चुलबुली सी हो जाएगी और इसके साथ ही वह पुरुष के कुछ भी कहने पर उसे अट्रैक्ट करने के लिए शानदार शब्द का इस्तेमाल कर सकती है और इस दौरान उस महिला की आवाज का स्वर और भी फ्रेंडली हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी चीजों और बातों से यह पता लगाया जा सकता है कि उस महिला को आपके साथ रहना बहुत पसंद है और आपसे संबंध बनाना चाहती है। नंबर 7, महिला आपकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करेगी। एक स्टडी के अनुसार महिलाओं की भी बहुत कुछ कह जाती है। हमें जरूरत है तो बस उन्हें बहुत ही गहराई से देखने की और अच्छी तरह से समझने की। और यदि कोई भी शादीशुदा महिला आपसे ज्यादा समय तक आंखें मिलाकर बात कर रही है फिर कुछ समय बाद आपसे शर्म से अपनी नजर झुका भी रही है, इसको प्यार का इशारा कहना ठीक है क्योंकि यह एक प्यार का इशारा है जिससे पता चलता है कि महिला आपसे सच्चा प्यार करती है। नंबर 8, महिला आपको देखकर प्यारी सी मुस्कान देगी। यह बात बिल्कुल सही है कि जब कोई महिला किसी को प्यार करती है तो जब भी आप उस महिला के सामने किसी न किसी तरह से जाएंगे तो वह महिला आपका स्वागत कुछ इस तरह से करेगी। वह हमेशा ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करेगी और इसके अलावा वह महिला आपको देखकर अपने को सही करने लगेगी। यह भी एक इशारा है कि वह महिला आपको सच्चा प्यार करती है और आपसे संबंध बनाना चाहती है। महिला आपके साथ इश्कबाजी वाले डायलॉग बोलेगी। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो देखने को मिल सके। आपका बहुत बहुत বন্ধুরা, আমি তোমাদের প্রিয় আরভি আপু। আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন একটি গল্প। আশা করি আজকের গল্পটি অনেক মজাদার হবে, তাই গল্পটি শোনার আগে অবশ্যই হেডফোন ব্যবহার করো। তাহলে চলো আজকের গল্পটি শুরু করি। আমার নাম রাজু বালা, বয়স 26 বছর, জাতে নাম শূদ্র। বাবার নাম বিমল বালা, বয়স 56 বছর। মায়ের নাম মিনি বালা, বয়স 44 বছর। আমরা গ্রামে মানে শহরতলিতে থাকি। বাবা চাকরি করেন। বাবা খুব সুন্দর দেখতে। আমার দাদু বাবার চাকরির ব্যবস্থা করে দেন আর সেই সত্ত্বে বাবা মাকে বিয়ে করেন। আমার মায়ের একটাই দোষ, কালো গায়ের রং। এমনি মা দেখতে অতটা সুন্দরী না, তবে দেখতে খারাপ নয়, শুধু রং কালো। বাবা মায়ের বিবাহিত জীবন 20 বছর ভালোই চলছিল, কিন্তু সমস্যা হলো বাবার বদলি হওয়ার পরে। বাবা শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা বদলি হয়ে আসেন। তারপরে বাবার খারাপ কাজ ধরা পড়ে যায়। বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করছেন, যেটা আমরা জানতে পারি। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের এক কন্যা আছে যার বয়স এখন 17 বছর ও আমার সৎ মা আছেন। তবে ওদের সাথে আমাদের এখন দেখা হয়নি। বাবা মায়ের মধ্যে অনেক অশান্তি। বাবা বাড়িতে খুব কমই আসেন। আমার কাছে আমাদের চলার মতন টাকা দেন বাবা। তবে সত্যি বলতে কি, বাবা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, আমাকে ফোন করে। মা আমার কাছে এই নিয়ে অনেক দুঃখ করে বাবা এরকম করেছে। আমার মা সত্যি খুব শান্ত প্রকৃতির। বাবার অন্যায় মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছেন। 6 মাস হয়ে গেল বাবা বদলি হয়ে এসেছেন, কিন্তু আমরা জানার পরে আর বাবা বাড়িতে রাত কাটানি। মাঝে মাঝে আসেন কিন্তু থাকেন না, টাকা দিয়ে চলে যান। মা আমাকে শুধু বলে, তুই একটা কিছু করতে পারলে ওর টাকায় আমি খেতাম না। আমি অনেক চাকরির পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু কোনো চাকরি হচ্ছে না। একদিন আমি চাকরির খোঁজে বেরিয়েছি, যদি কোনো সাধারণ চাকরিও পাই তো করবো। ইতিমধ্যে মায়ের ফোন এলো আমার কাছে। মা বলল, তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়। আমি বললাম, কেন, কি হয়েছে? মা বলল, তোর চাকরির লেটার এসেছে। আমি বললাম, আসছি বলে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়ি ফিরতেই মা আমার হাতে চাকরির লেটারটা দিয়ে বলল, বাড়ির কাছেই তোর চাকরিটা হয়েছে। আমি বললাম, ওনাকে আনন্দ কাছেই বাড়ি থেকে যেতে পারবো। মা বলল, ভগবান আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে।
আমি বললাম মা 10 জুলাই চাকরিতে যোগ দিতে হবে। মা বলল 2 দিন পরে। আমি বললাম বাবাকে জানাবো কি বলো? মা বলল না, পরে জানাবি, আবার কি করে বসে ঠিক আছে। আমি বললাম ঠিক আছে মা, তুমি যা বলবে তাই হবে। 2 দিন পরে যোগ দিলাম চাকরিতে। 1 মাস কেটে গেল, মাইনে নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিলাম। মা সে যে কি খুব খুশি হলো বলে বোঝাতে পারবো না আমি। বাবাকে জানালাম, বাবাও খুশি হলো। একদিন বাবা বাড়িতে এলে বাবা মা অনেক ঝগড়া হলো। বাবা মাকে বলল আমি আইনিভাবে আলাদা থাকতে চাই, তুমি সই করে দাও বলে মায়ের হাতে পেপার ধরিয়ে দিল। মা আমাকে ডাকলো, তুই বল আমি কি করব? আমি বললাম সই করে দাও, দরকার নেই বাবার, আজ থেকে তুমি আর আমি থাকবো, এই বাড়িকার বাবার কি? মা বলল না, আমার বাড়ি তোর দাদু করে দিয়েছে আমার নামে। আমি বললাম ঠিক আছে দিয়ে দাও। মার সাথে সাথে সই করে দিল। বাবা হাতে নিয়ে বলল তোর সাথে কথা আছে। আমি বললাম কোনো কথা নেই, তুমি যাও, তুমি আমার মাকে অনেক কষ্ট দিয়েছো, তোমার সাথে আর কোনো কথা নেই আমার। বাবা রেগে চলে গেল। মা কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগলো। আমি মাকে সান্ত্বনা দিলাম, চিন্তা করছো কেন, আমি তো আছি। পরের মাসে আমি একটা ল্যাপটপ কিনলাম ও নিয়মিত নেট ঘাঁটতে লাগলাম এবং এই গল্পের সাইট পেলাম। সাথে সাথে আমার গল্প পড়ে আমার কি যে হতে শুরু করলো কি জানি। সব গল্পের থেকে আমার মা ও ছেলের গল্প খুব ভালো লাগতে লাগলো। আমি এর আগে মায়ের দিকে খারাপ নজরে তাকাইনি কখনো, কিন্তু গল্প পড়ার পরে আমার মায়ের প্রতি অনেক টান বাড়তে লাগলো। আমার এমনিতেও রাস্তার বড় কাকিমাদের দেখলে আমার ভালো লাগতো, বড় মেয়েদের মোটা মহিলা দেখলে আমি তাদের পিছন পিছন হেঁটে যেতাম দেখার জন্য। কিন্তু এখন শুধু মাকেই দেখি। আমার মা কালো কিন্তু অনেক বড় আমার মায়ের। আমি নিয়মিত মাকে ভেবে হাতের কাজ করি। আমার সাইজ ও বেশ বড়, কিন্তু আমার সব ইচ্ছা মনে রয়ে গেল, কি করে কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি। পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছি, কিভাবে কি করব। কিছুদিন পরে একদিন রাতে হঠাৎ মায়ের রুম থেকে নরম কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি সাথে সাথে মায়ের দরজা নক করলাম, মা কিছুতেই দরজাটা খুলছিল না। আমি অনুমতি বিনয় করতে মা দরজা খুলল। আমি বললাম কি হয়েছে মা, কাঁদছেন কেন? মা বলল ও কিছু না, এমনি, তুই যা, আমি ভালো আছি। আমি বললাম না, আমার সত্যি করে বলো। মা বলল কি বলবো, তোর বাবা আমাকে এভাবে কষ্ট দিল, এত বড় খারাপ লোকটা যাকে আমি এত ভালোবাসতাম, সেটা ভেবেই আমার কান্না চলে আসে। আমার একটাই দোষ, আমি কালো। আমি বললাম কে বললো তুমি কালো? তোমার মতন কয়েকজন মহিলা আছে আমি রাস্তাঘাটে দেখি না, তুমি নিজেকে কালো বলে কোনো সময় ভাববে না। আমার মা অনেক ভালো ও সুন্দরী, রং সামান্য চাপা থাকলেই সে দেখতে ভালো না তা কিন্তু নয়, তোমার মতন সুন্দরী মহিলা কয়জনের আছে। তুমি মা সত্যি অনেক সুন্দরী, একদম বাবার কথা ভুলে যাও, আমি তো আছি। মা বলল সে তো বুঝালাম, কিন্তু সবাই ভাবে আমার দোষ, তাতেই তোর বাবা ছেড়ে চলে গেছে। আমি বললাম ছাড় তো লোকের কথা, কি কি বলে, আমি জানি আমার মা কেমন। আমার মায়ের মতন ভালো মা আর কেউ নেই, তুমি খুব সুন্দর মা, আমি তোমার ছেলে, তাতে আমি গর্বিত। মা বলল তুই আমার খুশি করার জন্য এসব বলছিস? আমি বললাম একদম না মা, তুমি সত্যি খুব সুন্দরী। আচ্ছা কাল তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। মা বলল কোথায়? আমি বললাম যেখানে নিয়ে যাব সেখানে যাবে, কোনো কথা হবে না। মা বলল ঠিক আছে নিয়ে যাস। আমি মাকে শান্ত করে নিজে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে খাওয়া শেষ করে মাকে নিয়ে একটু দূরে একটা বিউটি পার্লারে গেলাম। 2000 টাকা খরচা করে মাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। মা বলল কত টাকা খরচা হলো রে? আমি বললাম তা দিয়ে তোমার কোন দরকার আছে, এবার একবার আয়নায় নিজেকে দেখ আর বলো সত্যি তুমি সুন্দর কিনা। আর শোনো, এখন থেকে একটু রোমান্টিক পোশাক পরবে, দেখি তোমাকে কে অসুন্দর বলে। মা বলল কি রোমান্টিক পোশাক পরবো? আমি বললাম এবার আমি তোমাকে রোমান্টিক পোশাক কিনে দেবো, তাই পরে বের হবে। মা বলল যা, এই বয়সে পরা যায়। আমি বললাম আমার বসের বয়স 55 বছরের উপরে, উনি নিয়মিত পরে আসেন অফিসে, দারুণ লাগে দেখতে। মা বলল সত্যি সত্যি বলছিস? আমি বললাম কেন তোমাকে মিথ্যে বলবো। শুনি রবি ও সোম আমার 3 দিন ছুটি আছে, ভাবছি একটু বেরিয়ে আসি, যাবে তো? মা বলল কোথায় যাবি? আমি বললাম দেখি কোথায় যাওয়া যায়। মা বলল ঠিক আছে যাব। আমি বললাম মা তোমার জন্য অফিস থেকে আসার সময় রোমান্টিক পোশাক নিয়ে আসবো আজ, কিন্তু। মা বলল কি হলো? আমি বললাম মাপ তো বলতে হবে দোকানদারকে। মা বলল 38 বুঝলি। আমি বললাম ঠিক আছে। আমি মনে মনে বললাম মা কি সুন্দরভাবে ছেলেকে বলে দিলে। পরের দিন অফিস ছুটির পরে একটা দোকানে গেলাম। মায়ের সাইজ বলতে আমাকে অনেকগুলো পোশাক দেখালো, তার মধ্যে একটা লাল ও একটা সাদা পোশাক নিলাম, ও গোলাপি ও হলুদ পোশাক নিলাম। সন্ধ্যা 7টায় বাড়ি ফিরলাম আমি। মা আমাকে টিফিন দিল। আমি খেতে খেতে বললাম একটা পরে দেখো তো মাপ ঠিক আছে কিনা। মা বলল এখনই পরবো। আমি বললাম জি হ্যাঁ ঠিক আছে বলে নিয়ে রুমে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে লাল পোশাক পরে আমার সামনে আসলো। আমি বললাম মা টাইট হচ্ছে না তো? মা বলল সামান্য হচ্ছে, কিন্তু পরলে তো একটু ছাড়বে, থাক ঠিক আছে। আমি বললাম মা তোমাকে যা লাগছে না, দারুণ লাগছে, তোমার বয়স 15 বছর কমে গেছে, দারুণ লাগছে না তোমাকে? মা বলল লজ্জা পেয়ে বলল যা বোকা। মা আবার বলল সত্যি আমাকে দেখতে ভালো লাগছে। আমি বললাম অনেক সুন্দর লাগছে বলে মোবাইল নিয়ে মায়ের কয়েকটা ছবি তুললাম। এরপর মাকে দেখালাম সামনের সাইড ও পিছন থেকে তোলা ছবি। কি সত্যি করে বলো আমার মা সুন্দরী কিনা?
মা বলল, তোর ভালো লাগছে তো। আমি বললাম, সে তোমাকে কি করে বোঝাই কত ভালো লাগছে আমার। আমি বললাম, এটা পাল্টে ওটাও পরে আসো না একটু। মা বলল, ঠিক আছে বলে চলে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে ওটা পরে এলো। আমি বললাম, বাহ, এটা তো আরো সুন্দর লাগছে না তোমাকে? তুমি এত সুন্দর আমি কিন্তু আগে বুঝতে পারি নাই। বাবা তোমাকে দেখলে আবার ফিরে আসবে। মা বলল, রেগে গিয়ে বলল, ওর কথা আর মুখে আনবি না, তবে আমি কিন্তু আর পরবো না। আমি কান ধরে বললাম, ভুল হয়ে গেছে মা, তবে। মা বলল, তবে কি? আমি বললাম, তুমি এই পরে বের হলে কিন্তু তোমার ছেলের বয়সীরা তোমার পিছু নেবে, বলে দিলাম, সাবধান থেকো। মা বলল, আবার মজা হচ্ছে। আমি বললাম, না না, সত্যি বলছি, তোমাকে দেখে আমারই প্রেম করতে ইচ্ছা করছে। মা বলল, আমার কান ধরে আবার মজা হচ্ছে। আমি বললাম, সত্যি মা, তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে, তোমার রূপের পূজা করতে ইচ্ছা করছে আমার। মা লজ্জা পেয়ে বলল, যা কি যে বকছিস। আমি বললাম, না না, সত্যি বলছি আমি। মা বলল, না, খুলে রেখে আসি। আমি বললাম, না না, খুলে রাখার দরকার নেই, পরে থাকো না, আমি একটু দেখি তোমাকে। মা বলল, ময়লা হয়ে যাবে না, বললি ঘুরতে যাবি তখন পরবো। আমি বললাম, তাতে কি তোমার ছেলে এখন চাকরি করে, লাগলে আরেকটা কিনে দেবো। ও আচ্ছা, তোমার কি আর কিছু লাগবে? তুমি তো বলনি, আর আমি কিন্তু ওর সাহস পাইনি। মা বলল, কি? আমি বললাম, আরে এর নিচে পড়তে হয় না। মা বলল, বোকা দেখছিস, সব খবর রাখিস, লাগবে তো। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসবো। মা বলল, তুই কিনতে পারবি, দোকানে গিয়ে কি বলবি? আমি বললাম, ওই যা নাম তাই তো কাল বললে। মা বলল, তোর লজ্জা করবে না? আমি বললাম, কেন, কিসের লজ্জা? মা বলল, দোকানদার যদি জিজ্ঞেস করে কার জন্য কিনবি। আমি বললাম, কেন বলবো মায়ের জন্য? মা বলল, মায়ের নাম কেউ নিয়ে বলবি, অন্য কারোর জন্য। আমি বললাম, ও ঠিক আছে বলে উঠে পড়লাম। একটু বের হলাম আর মনে অনেক শান্তি পেলাম। মা খুশি হয়েছে তো। পরের দিন অফিস থেকে বের হয়ে গেলাম, সেই দোকানে গিয়ে দুটো নিলাম, দুটোই লাল, একটা ডিপ আর একটা লাইট। বাড়ি এলাম, এসে মায়ের হাতে দিলাম আর বললাম, পরে দেখো আমি খাই ততক্ষণে। মা একটু পরে এলো শাড়ি পরা অবস্থায় আর বলল, কি এনেছিস? আমি বললাম, কেন 38? মা বলল, টাইট হয়ে যাচ্ছে, আমি হুক লাগাতে পারছি না, বলেছিলাম না বড় 38 আনতে। আমি বললাম, তবে কি করবে, কাল পরিবর্তন করে নিয়ে আসবো। খুব কষ্ট হলো লাগাতে। মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, পরিবর্তন করতে হবে, 38 বড় আনবি। পরের দিন আবার পরিবর্তন করে নিয়ে এলাম, মাকে পড়তে বললাম। আমি বললাম, মা এবার ঠিক আছে? মা বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে, সুন্দর হয়েছে। আমি বললাম, ছেলেকে একটু দেখাবে কি? মা আঁচল নামিয়ে বলল, দেখ, বলে আবার ঢেকে দিল। আমি এক পলক দেখতে পেলাম, দুই পাশে কি সুন্দর, মনটা ভরে গেল। আমি বললাম, মা নিচের দুটো ঠিক আছে? মা বলল, হ্যাঁ, তবে এই যে মায়ের জন্য করছিস বউ আসলে। আমি বললাম, না, আমি বিয়ে করব না, বাবা যেটা তোমার সাথে করছে, আবার যদি পরের মেয়ে তোমাকে কষ্ট দেয়, তাই ঠিক করেছি আমি বিয়ে করব না, আমি আর তুমি থাকবো। মা বলল, পাগল ছেলে, তাই হয় নাকি? আমি বললাম, কেন হবে না? আমি বিয়ে না করলে কে করাবে? মা ঘরে গিয়ে পড়ে এলো এবং বলল, কোথায় যাবি বললি না তো? আমি বললাম, চলো সারাদিনের জন্য কলকাতা ঘুরবো, তুমি নিকো পার্ক জাদু হয়ে গেছো। মা বলল, না, কোথায় আর গেলাম, আর কবে গেলাম? আমি বললাম, সারাদিনের জন্য যাব আর রাতে খাবার খেয়ে আসবো। মা বলল, ঠিক আছে, যাব। শনিবার যাব, কাল বাদে পরশু কেমন? আমি বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে। শনিবারে আমরা দুইজনে, মা আর ছেলে, রেডি হতে লাগলাম। আমি জিন্স প্যান্ট আর টি শার্ট পরলাম। মা বলল, আমি কোনটা পরবো? আমি বললাম, লাল পোশাক আর হলদেটা পরো। মা তাই করলো। মা আর আমি বেরিয়ে 9:30টায় জাদুঘরে পৌঁছালাম, টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলাম। ঘন্টা খানিক ভিতরে ঘুরে দেখলাম, তারপরে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাওয়া দাওয়া করে ট্যাক্সি নিয়ে 11:30টায় ভিক্টোরিয়া গেলাম। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলাম আমরা, অনেক লোক আছে। আমরা ভিতরে সব দেখে বের হয়ে পার্কের দিকে গেলাম, সেখানে সব 2 জন করে বসে আছে। আমি মাকে বললাম বসবে, মা বলল, হ্যাঁ চলো একটু বসি। আমি পুকুরের পাড়ে চলে গেলাম, কোনো বেঞ্চই ফাঁকা নেই। এক কোণে একটা ফাঁকা পেলাম, গিয়ে বসলাম। সব বেঞ্চে যা হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। মা একটু লজ্জা পেল, এদিক ওদিক দেখছে, আবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, মা এখান থেকে যাবে নাকি? মা বলল, কোথায় যাবো, এখন তো খুব গরম, আর একটু সময় বসি তারপর যাব। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে বস। মা বলল, নিরিবিলি জায়গা কিন্তু। আমি বললাম, কি কিন্তু বলো? মা বলল, না, এই যা হচ্ছে তাই বলছি। আমি বললাম, কি হচ্ছে? মা বলল, দেখতে পাচ্ছিস না কি হচ্ছে? আমি বললাম, ওদের কাজ ওরা করছে, আমাদের কি? মা বলল, সে ঠিক আছে, দেখ ওইদিকে কোণে এক বয়স্ক মহিলা আর একটা ছোট ছেলে কি করছে, এটা ঠিক না। আমি বললাম, বাদ দাও তো, ওদের মধ্যে কি সম্পর্ক আমরা জানি। মা বলল, বয়সের একটা ব্যাপার আছে তো। আমি বললাম, ভালোবাসা করতে বয়স লাগে না, মনে মিল হলেই হলো। মা বলল, তা ঠিক বলেছিস। আমি বললাম, চলো একটু হাঁটি ওই ঝোপের পাশ দিয়ে, কি সুন্দর ঝাড়ের ছোট গাছ, বেশ সুন্দর। মা বলল, যাবি, চল তাহলে। আমরা পাশের দিকে যেতেই যা দেখলাম, ও এখানে এসব হয়। আমার লজ্জা লাগলো। আমি আগে মা পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম, মা ও দেখলো। আমি ওদের পেরিয়ে মাকে বললাম, কি হচ্ছে এসব, না আমরা কি বেরিয়ে যাব?
মা বলল, যাবি তবে এখন আর কোথায় যাব? আমি বললাম, নিকো পার্কে। মা বলল, ওখানে ও এরকম হবে না, তার কি কোনো মানে আছে? আমি বললাম, সেটা অবশ্য ঠিক বলেছ, তবে কি আর করি, চলো একটু ঘুরি বলে মায়ের হাত ধরে হাঁটতে লাগলাম। আমি দেখছি মাও দেখছে, মায়ের হাত ঘামছে। আমি বললাম, মা কি হলো, এত ঘামছো কেন? মা বলল, যা গরম না ঘেমে উপায় আছে। আমি বললাম, তোমার পোশাকটা প্রায় ভিজে গেছে। মা বলল, না রে, এমনি গরম তাই। আমি বললাম, তাহলে এক জায়গায় বসি। মা বলল, কোথায় বসবি? আমি বললাম, এখানে বসি বলে একটা গাছ তলায় বসতে গেলাম। মা বলল, না বসতে হবে না, বাড়ি চলো, ট্যাক্সি ধরে। আমি বললাম, ঠিক আছে, একটা দুপুরের খাবার। মা বলল, বাড়ির কাছ থেকে বিরিয়ানি নিলে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, চলো, সোজা বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মা চুপটি করে বসে আছে, কোনো কথা বলল না। 1 ঘন্টা 20 মিনিট লাগলো বাড়ি আসতে। দুইজনে মিলে বিরিয়ানি খেলাম। আমি মাকে বললাম, মা তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো, কোনো কথা বলছো না? মা বলল, না রে, কেন রাগ করবো, আমার আসলে ভালো লাগছিল না বলে জোরে কেঁদে উঠলো মা। আমি বললাম, মা কি হলো, কাঁদছো কেন? মা বলল, ওইখানে তোর সাথে না গিয়ে আমার যাওয়া উচিত ছিল তোর বাবার সাথে, আর সে আমাকে ছেড়ে অন্যকে নিয়ে মজা করছে। আর কিছু না বাবা, তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোর উপর রাগ করতে পারি, তুই আমাকে খুশি রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করছিস। আমি বললাম, মা তোমাকে বলেছি না বাবাকে ভুলে যেতে, ওনার কথা আর মাথায় আনবে না। আমি বললাম বলে সেদিন আমাকে বকলে, আর আজ বাবার কথা ভেবে কাঁদছো তুমি। আমি বলেছি তো বাবার অভাব আমি পূরণ করব, তোমার যখন যা লাগবে আমাকে বলবে, আর তুমি বাবার কথা ভেবে মন খারাপ করছো, এটা ঠিক না মা। মা বলল, একটু হেসে, আমার ভুল হয়ে গেছে, লক্ষ্মী আমাকে মাফ করে দেয়। আমি বললাম, ঠিক আছে ঠিক আছে, ভেবেছিলাম কিছু কেনাকাটা করবো, তা আর হলো না। মা বলল, কি আবার কেনাকাটা করবি? আমি বললাম, তোমার জন্য শাড়ি ও গয়না কিনবো ভেবেছিলাম। মা বলল, কি গয়না? আমি বললাম, একটা নেকলেস। মা বলল, সত্যি বলছিস? আমি বললাম, তবে কি মিথ্যে তুমি মুখ কালো করে চলে এলে? মা বলল, সন্ধ্যার পরে চলো। আমি বললাম, যাবে তো? মা বলল, হ্যাঁ যাব। দুইজনে সন্ধ্যার পরে দোকান থেকে একটা নেকলেস নিলাম ও মাকে শাড়ি কিনে দিলাম বাড়িতে পরার জন্য। সব কিনে বাড়িতে এলাম 9:30টার সময়। সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল, আশেপাশে নিঝুম রাত। আমি তরকারি আর রুটি নিয়ে এসেছি। মা বলল, আগে খেয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে। আমি খেতে খেতে বললাম, আর বাবার কথা মনে করবে না তো? মা বলল, না করবো না। মা বলল, তোর বাবা আজ পর্যন্ত কোনোদিন একটু গহনা আমাকে দেয়নি। আমি খুব খুশি রে। খাওয়া শেষ হতেই বললাম, এবার একটু পরে দেখাও আমাকে। মা দেখাচ্ছি বলে সব হাতে নিয়ে বলল, আমার ঘরে আয়, ওখানে বসে পড়বো। আমি বললাম, চলো দাঁড়াও, বাইরে সব বন্ধ করে দেই, তুমি গিয়ে পড়তে লাগো। আমি গেট বন্ধ করে আলো নিভিয়ে লক করে মায়ের ঘরে গেলাম। মা এবার ব্লাউজ পরলো, তারপরে শাড়িটা পরলো, সব শেষে নেকলেসটা পরলো। আমি মাকে দেখে যাচ্ছি, কি সুন্দর লাগছে মাকে। মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা না বলে চোখ দিয়ে জল ছেড়ে দিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মাকে বললাম, না কি হলো? মা বলল, তুই আমাকে এত ভালোবাসিস। আমি বললাম, আমার মাকে ভালোবাসবো না তো কাকে বাসবো? আমি তোমাকে বাবার কথা কখনো মনে আনতে দেব না। বাবার মতন তোমার সব চাহিদা পূরণ করব। তুমি শুধু আমাকে বলবে এইটা করো, দেখবে আমি করি কিনা। মা আমাকে ধরে কেঁপে কেঁপে কাঁদছে। মা একদম কাঁদবে না, এখন তোমার আনন্দ করার দিন, তোমার ছেলে বড় হয়েছে, চাকরি করে। আমি মাকে আরো ধরে নিলাম। আমি বললাম, ও মা এবার থামো তো দেখি বলে মায়ের চোখে জল মুছিয়ে দিতে আমি এই সুযোগে আর বললাম, মা তোমার আর কিসের অভাব? মা বলল, আমার আর কোনো অভাব নেই রে। আমি বললাম, তবে এখনো কাঁদছো কেন? আমি বলছি না তোমার সব অভাব আমি পূরণ করব, শুধু একবার মুখ দিয়ে বলবে। আমি সব করব, সে যদি খারাপ কোনো কাজও হয় আমি করব, কথা দিলাম না তোমাকে। যাবতীয় কাজ খারাপ কাজ ও, কিন্তু তোমার চোখের জল আমি দেখতে পারবো না। কথা দাও, যা লাগবে বলবে, বাবার সব অভাব আমি পূরণ করব। মা আরো জোরে জোরে কেঁদে উঠল। আমি বললাম, আমার মা কি হয়েছে বলো আমাকে, আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে? মা বলল, নারে রক্ষিতি, আমি এত সুখ কি করে পেলাম সেটা ভাবছি। আমি বললাম, তবে আমাকে কথা দাও, তোমার যা লাগবে আমাকে বলতে দেরি করবে না। বলেছি না, সে যদি কোনো লোক সমাজে না বলা কাজ ও হয় আমি করব, কিন্তু আমি তোমাকে অসুখী থাকতে দেব না। বলো না, আর কিছু লাগবে আমাকে বলো। পার্কে গিয়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছিল, আমার ভয় করছিল, এত ঘেমে গিয়েছিলে। মা বলল, ও কিছু না, হঠাৎ চোখে পড়েছিল তো তাই। আমি যে কি কষ্টে আছি তা তোকে কি করে বলি? আমি বললাম, তোমাকে বললাম না আমার সাথে সব বলবে, আমি তোমার ছেলে, তো শুনেছি ছেলে বড় হলে মায়ের বন্ধু হয়, তো আমাকে বললো না কেন? মা বলল, তবুও সব বলা যায় না রে, তোর বাবা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে 10 বছর হলো, এ ব্যথা কাকে বলবো বল? আমি বললাম, আমাকে বলবে, বললাম না আমাকে সব বলবে, যা করা লাগে আমি করব। বাবার আর দরকার নেই, বাবার সব অভাব আমি তোমার পূরণ করব। আমি এখন 26 বছরের ছেলে, বাবার কি দরকার তুমি বলো? মা বলল, তবুও আমি তোর মা, তোর সাথে সব বলা যায় বা করা যায় না। আমি বললাম, না আমি তো তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি না, আর এখানে তো কেউ নেই, আমাকে বলতে পারো তুমি। মা তুমি কষ্ট চেপে রাখবে না, আমাকে বলো। তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ আমি জানি, বাবার কষ্ট তোমাকে শেষ করে দিয়েছে।
আমি বুঝি বলেই বলছি, এখনকার সমাজের লোকের বাইরে দেখে ভিতরে কেউ দেখে না, বুঝলে? আমি তোমার 10 বছর ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু বাকি জীবন তোমাকে কষ্ট পেতে দেব না। মা বললো আমি কালো দেখতে ভালো না বলেই আমার আজ এই অবস্থা। আমি বললাম আমার মা ভালো বেশ, আর কিছু না, বলছি না ওই কথা বলবে না। তুমি কতটা সুন্দর সেটা আমি কাল দেখেছি। মা বলল কাল কি দেখি তুই? আমি বললাম তোমার শাড়ি পরে দেখেছিলাম না এক পলক, তাতেই বুঝে গেছি তুমি কত সুন্দর। তুমি অসুন্দর সেটা কখনো বলবো না আমি। আমার মা খুব সুন্দর। আমি বললাম মা অনেক সময় গেল আমাকে বললে না তো। তুমি বলো তোমার কি কষ্ট, আমি সব পূরণ করব। মা বলল কি করে বলি কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাতো না তোর বাবা? বিয়ে করেও কষ্ট দিনে চলে গেল। আমি এই কষ্ট কি করে বলি, আমার 10 বছর শেষ করে দিয়ে গেল। আমি বললাম মা তো আমি তোমার সব কষ্ট পূরণ করে দেব। এখন আধুনিক যুগ, পুরানো কথা নিয়ে থাকলে হবে না, এ যুগে সব হয়। আমি আর কি করে বলবো? বললাম তো 10 বছর ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু বাকি জীবন তোমাকে সুখ দিয়ে যাব। বাবার অভাব আমি পূরণ করব। তুমি কি চাও তাই বলো। মা বলল চাইলেই কি পাওয়া যায়? আমি বললাম ছেলের কাছে সব পাবে। মা বলল আমার কি অভাব তুই বুঝিস? আমি বললাম হ্যাঁ বুঝি বলেই বলছি। মা বলল তবে তুই বল আমার কি অভাব এখন? আমি বললাম ভুল হলে রাগ করবে না তো? মা বলল না করবো না। আমি বললাম বলবো। মা বলল বলো। আমি বললাম তোমার সুখ দরকার, কি ঠিক বলেছি? মা চুপ করে রইল। আমি বললাম কি বলো, কিছু ভুল না ঠিক? মা বলল আমি জানি না। আমি বললাম না তুমি যদি বলো তো সব করবো আমি। মা বলল এ হয় না রে, ছেলের সাথে হয় নাকি? আমি বললাম তোমার ইচ্ছা করে না একদম। মা বলল করে, কিন্তু তুই যা বললি আমি তোর মা, তোর সাথে কি করে করা যায় এসব? क्या आपको लगता है कि महिलाएं आपको नोटिस नहीं कर रही हैं? फिर से सोचें। आज हम उन सूक्ष्म संकेतों को उजागर करते हैं जो बताते हैं कि महिलाएं आपको देख रही हैं, जिन्हें ज्यादातर पुरुष अक्सर अनदेखा कर देते हैं। 1 सेकंड से ज्यादा समय तक नजर रखने वाली त्वरित नजर से लेकर जब आप पास होते हैं तो वह जिस तरह से अपना आसन बदलती है, ये संकेत विवेकपूर्ण लेकिन बताने वाले होते हैं। हम आपको इन संकेतों के जरिए मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप पहचान सके कि कब आप किसी के ध्यान का केंद्र हैं। इन कमजोर संकेतों को पहचानने और उनका मतलब समझने के लिए हमारे साथ जुड़े। अनजाने में ही आप जिस रुचि को आकर्षित कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा जागरूक बने। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस लाल बटन को दबाएं और टिप्पणी करें कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1, आपको तेजी से ऊपर से नीचे तक देखना। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई महिला आपको सिर से लेकर पैर तक देख रही है तो आप उसे नोटिस करेंगे, लेकिन फिर से सोचें। महिलाएं एक बार में ही आपके शरीर का मूल्यांकन करने में माहिर होती हैं। यह एक संक्षिप्त लेकिन पूरी नजर होती है जो आपके बालों से लेकर आपके जूतों तक सब कुछ देखती है, जिसमें आपके समग्र निर्माण और अनुपात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वह आपकी छाती, आपकी बाहों या आपके पिछले हिस्से पर एक पल के लिए रुक सकती है, लेकिन पलक झपकते ही आप उसे देख नहीं पाएंगे। यह तेज तर्रार मूल्यांकन आपके समग्र आकर्षण को बिना ज्यादा स्पष्ट किए समझने का उसका तरीका है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई क्षणभंगुर नजर आप पर गुजर रही है तो उसे नजरअंदाज करने में जल्दबाजी न करें। हो सकता है कि वह बस नजारे की सराहना कर रही हो। 2 कमरे में प्रवेश करते समय अपनी मुद्रा ठीक करना। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो कोई महिला अचानक सीधी होकर बैठ जाती है या अपना रुख बदल लेती है? मुद्रा में यह अचानक बदलाव एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी उपस्थिति से अवगत है और वह एक अच्छा प्रभाव डालना चाहती है। चाहे वह अपने बालों को सीधा कर रही हो, अपने कपड़ों को सीधा कर रही हो या बस थोड़ा सा ऊपर खड़ी हो, ये छोटे छोटे बदलाव खुद को सर्वश्रेष्ठ संभव प्रकाश में प्रस्तुत करने का उसका तरीका है। ऐसा लगता है जैसे वह अवचेतन रूप से कह रही हो, मैं आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती हूँ। इसलिए यदि आप देखते हैं कि जब आप किसी महिला के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह अचानक अधिक संतुलित और सुव्यवस्थित हो जाती है, तो इसे एक प्रशंसा के रूप में लें। उसने निश्चित रूप से आपको देखा है और उसे वह पसंद है जो वह देखती है। 3, अपना सिर थोड़ा झुकाना। यह एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यह बहुत कुछ कहता है। जब कोई महिला आपसे बात करते समय या आपकी बात सुनते समय अपना सिर थोड़ा झुकाती है, तो यह एक अवचेतन संकेत है कि वह आपकी बातों में दिलचस्पी रखती है। यह सूक्ष्म शारीरिक भाषा संकेत अक्सर एक हल्की मुस्कान या चेहरे की विशेषताओं के नरम होने के साथ होता है, जो दर्शाता है कि वह व्यस्त और चौकस है। ऐसा लगता है कि वह हर शब्द को सुनने के लिए शारीरिक रूप से झुक रही है, भले ही वह वास्तव में करीब न आ रही हो। यह सिर का झुकाव रुचि और आकर्षण का एक शक्तिशाली संकेत है, जिसे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अनदेखा करना आसान है। लेकिन एक बार जब आप इसे नोटिस करना शुरू करते हैं तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह कितनी बार होता है।
तो अगली बार जब आप किसी महिला से बात कर रहे हो और आप उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ देखें, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह निश्चित रूप से आप में दिलचस्पी रखती है। 4. जब वह आपको दूर से देखे तो मुस्कुराए। आप सड़क पर चल रही हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, जब अचानक आप सड़क के दूसरी ओर से एक महिला की नजर को पकड़ लेते हैं। वह बात करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं है, लेकिन उसने निश्चित रूप से आपको देखा है और वह मुस्कुरा रही है। यह वास्तविक मुस्कान स्वतंत्र रूप से और बातचीत की अपेक्षा के बिना दी गई एक स्पष्ट संकेत है कि उसे वह पसंद है जो वह देख रही है। यह आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने और दूर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक तरीका है। इस प्रकार की मुस्कान उस विनम्र, औपचारिक मुस्कान से अलग होती है जो वह किसी अजनबी या परिचित को दे सकती है। यह अधिक गर्मजोशी से भरी, अधिक प्रामाणिक होती है और अक्सर आंखों में हल्की शर्म या चमक के साथ होती है। इसलिए यदि आप खुद को ऐसी दूर की मुस्कुराहटों में से एक के रूप में पाते हैं, तो इसे एक प्रशंसा के रूप में लें। हो सकता है कि वह अभी आपके पास आने के लिए तैयार न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उत्सुक है। 5. क्षण भर के लिए आंखें चौड़ी हो जाना। यह एक ऐसा पल है जिसे आप पलक झपकाकर भूल जाएंगे, लेकिन यह एक शक्तिशाली पल है। जब कोई महिला आपको देखकर क्षण भर के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है, तो यह आश्चर्य या आकर्षण का एक प्रतिवर्ती संकेत है। आंखों का यह संक्षिप्त विस्तार अक्सर हल्की सांस लेने या होठों को खोलने के साथ होता है, जैसे कि वह अचानक आपकी उपस्थिति से चौंक गई हो। यह एक अवचेतन प्रतिक्रिया है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकती है, जो आपके प्रति एक मजबूत और तत्काल प्रतिक्रिया का संकेत देती है। यह आंखें चौड़ी करने वाला पल केवल एक सेकंड का अंश हो सकता है, लेकिन यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपने एक छाप छोड़ी है। इसलिए यदि आप किसी महिला की आंखें आपको देखकर चौड़ी हो जाती हैं, तो इसे नजरअंदाज करने में जल्दबाजी न करें। हो सकता है कि वह जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्पी रखती हो। 6. अपने जूतों पर नजर डालना। आप सोच सकते हैं कि आपके जूते सिर्फ आपके पैरों को ढकने के लिए हैं, लेकिन एक महिला के लिए वे आपकी शैली और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जब कोई महिला आपके जूतों पर नजर डालने के लिए एक पल लेती है, तो वह सिर्फ खरोंच या गंदगी की जांच नहीं कर रही होती है। वह आपके समग्र फैशन सेंस और बारीकियों पर ध्यान देने का आकलन कर रही होती है। क्या आपके जूते पॉलिश किए हुए और अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, या वे घिसे हुए हैं? क्या वे आपके पहनावे और अवसर से मेल खाते हैं, या वे पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं? ये छोटी-छोटी बातें उसे आपके चरित्र और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दे सकती हैं और कुछ मामलों में डील ब्रेकर भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि कोई महिला आपके जूतों पर नजर गड़ाए हुए है, तो संकोच न करें। इसे इस बात का संकेत मानें कि उसे पूरे पैकेज में दिलचस्पी है, सिर से पैर तक। 7. अपने सामान पर ध्यान देना। सिर्फ आपके कपड़े ही महिलाओं का ध्यान आकर्षित नहीं करते, बल्कि छोटी-छोटी चीजें भी आपके लुक को निखारती हैं। जब कोई महिला आपकी एक्सेसरीज पर ध्यान देती है, चाहे वह घड़ी हो, ब्रेसलेट हो या धूप का चश्मा, तो वह आपकी स्टाइल को परिभाषित करने वाले विवरणों पर ध्यान दे रही होती है। ये छोटे-छोटे स्पर्श उसे आपके व्यक्तित्व और रुचियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और कुछ मामलों में बातचीत का विषय भी बन सकते हैं। एक अनोखी या आकर्षक एक्सेसरी आपको भीड़ से अलग कर सकती है और यह दिखा सकती है कि आपने अपने लुक को लेकर बहुत सोचा और मेहनत की है। इसलिए अगर आप किसी महिला को अपनी कलाई पर नजर गड़ाते या आपके चश्मे की तारीफ करते हुए पाते हैं, तो उसे अनदेखा करने में जल्दबाजी न करें। वह उन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दे रही है जो आपको आप बनाती है और उसे वह पसंद आता है जो वह देखती है। 8. आपकी गंध पर प्रतिक्रिया। सज्जनों, एक अच्छी खुशबू की शक्ति को कभी कम मत समझिए। जब कोई महिला आपके कोलोन या प्राकृतिक कस्तूरी की खुशबू को सूंघती है, तो उसकी प्रतिक्रिया उसकी रुचि का स्पष्ट संकेत हो सकती है। वह थोड़ा और करीब झुक सकती है, गहरी सांस ले सकती है, या यह भी टिप्पणी कर सकती है कि आपकी खुशबू कितनी अच्छी है। यह प्रतिक्रिया सिर्फ एक विनम्र तारीफ से ज्यादा है। यह एक संकेत है कि आपकी खुशबू का उस पर असर हो रहा है। खुशबू का स्मृति और भावना से गहरा संबंध है, और एक सुखद या आकर्षक खुशबू एक शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई महिला गहरी सांस ले रही है या आपके कोलोन पर टिप्पणी कर रही है, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। आपकी खुशबू निश्चित रूप से आपके पक्ष में काम कर रही है और वह आपको यह बताने से नहीं डरती। 9. अपने हाथों पर लंबे समय तक नजर रखना। आप अपने हाथों के बारे में शायद ज्यादा न सोचते हो, लेकिन एक महिला के लिए वे आकर्षण का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। जब कोई महिला आपके हाथों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालती है, तो वह सिर्फ आपके नाखूनों के नीचे गंदगी की जांच नहीं कर रही होती है। वह आपकी समग्र साज सज्जा और स्वच्छता का आकलन कर रही होती है और शायद यह भी कल्पना कर रही होती है कि उसके हाथ उसकी त्वचा पर कैसा महसूस कर सकते हैं। क्या आपके हाथ मजबूत और मर्दाना है, जिनमें अच्छी तरह से परिभाषित नसें और मजबूत पकड़ है, या वे मुलायम और अच्छी तरह से संवारे हुए हैं,
जिनमें बड़े करीने से कटे हुए नाखून और चिकनी त्वचा है। ये छोटी छोटी बातें उसे आत्म देखभाल के प्रति आपके समग्र दृष्टिकोण और विवरण पर ध्यान देने का एहसास करा सकती है। इसलिए अगर आप किसी महिला की नजर अपने हाथों पर टिकी हुई पाते हैं तो उन्हें छिपाने में जल्दबाजी न करें। वह निश्चित रूप से इस बात में दिलचस्पी रखती है कि वे क्या कर सकते हैं। 10. उसके गले को कुछ देर तक छूना। यह एक सूक्ष्म इशारा है, लेकिन यह बहुत कुछ कहता है। जब कोई महिला आपसे बात करते समय या आपकी बात सुनते समय अपने गले को छूती है, तो यह आत्मचेतना या भेद्यता का अवचेतन संकेत है। शरीर का यह नाजुक क्षेत्र अक्सर अंतरंगता और विश्वास से जुड़ा होता है, और इसे छूना खुद को शांत करने या अपनी स्त्रीत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है। यह ऐसा है जैसे वह कह रही हो, मैं अभी थोड़ा खुला महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। गले को छूने के इस इशारे के साथ अक्सर सिर का हल्का सा झुकाव या आंखों को नीचे करना होता है, जो उसके खुलेपन और ग्रहणशीलता की भावना पर और जोर देता है। इसलिए अगर आप अपनी बातचीत के दौरान किसी महिला का हाथ अपनी गर्दन पर फड़फड़ाता हुआ देखते हैं, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह निश्चित रूप से जुड़ाव महसूस कर रही है और वह इसे दिखाने से नहीं डरती। 11. उसके चेहरे या ठोड़ी को छूना। अपने गले को छूने की तरह ही बातचीत के दौरान अपने चेहरे या ठोड़ी को छूने की एक महिला की प्रवृत्ति आत्मजागरूकता और रुचि का एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है। यह अवचेतन इशारा अक्सर उसकी विशेषताओं पर ध्यान आकर्षित करने या कमजोरी के क्षण में खुद को शांत करने का एक तरीका होता है। वह अपने कान के पीछे बालों की एक लट को ब्रश कर सकती है, अपनी जबड़े की रेखा को उंगलियों से छू सकती है, या ध्यान से सुनते समय अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में रख सकती है। ये छोटे छोटे स्पर्श उसकी सबसे अच्छी विशेषताओं को उजागर करने और यह दिखाने का एक तरीका है कि वह व्यस्त और चौकस है। ये इस बात का भी संकेत है कि वह थोड़ा उजागर या आत्मजागरूक महसूस कर रही है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। इसलिए यदि आप अपनी बातचीत के दौरान किसी महिला के हाथों को अपने चेहरे पर घूमते हुए देखते हैं, तो विषय बदलने में जल्दबाजी न करें। वह निश्चित रूप से आप में दिलचस्पी रखती है और वह चाहती है कि आप यह जानें। 12. सूक्ष्म होंठ चाटना। यह एक छोटी सी हरकत है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। जब कोई महिला आपसे बात करते समय या आपकी बात सुनते समय अपने होठों को धीरे से चाटती है, तो यह आकर्षण और जिज्ञासा का अवचेतन संकेत है। यह बमुश्किल दिखने वाला इशारा अक्सर उसके मुंह की ओर ध्यान आकर्षित करने या बातचीत की तैयारी में उसके होठों को नम करने का एक तरीका होता है। यह ऐसा है जैसे वह कह रही हो, मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ और मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ पर हूँ। होंठ चाटने के इस इशारे के साथ अक्सर होठों का हल्का सा खुलना या मुस्कुराहट का संकेत होता है, जो उसकी रुचि और ग्रहणशीलता पर और अधिक जोर देता है। इसलिए यदि आप अपनी बातचीत के दौरान किसी महिला की जीभ को जल्दी से बाहर निकलते हुए देखते हैं, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह निश्चित रूप से गर्मी महसूस कर रही है और वह आपको भड़काने से नहीं डरती। 13. दर्पण जांच। आप सोच सकते हैं कि एक महिला का शीशे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखना घमंड की निशानी है, लेकिन यह वास्तव में आप में उसकी रुचि का संकेत हो सकता है। जब कोई महिला बिना सीधे आंख से संपर्क किए आप पर एक नजर डालने के लिए परावर्तक सतह का उपयोग करती है, तो यह बहुत स्पष्ट हुए बिना आपको देखने का एक सूक्ष्म तरीका है। वह अपने बालों को ठीक कर सकती है, अपने कपड़ों को ठीक कर सकती है, या बस अपने साथ आपके प्रतिबिंब की प्रशंसा करने के लिए एक पल ले सकती है। यह दर्पण जांच व्यवहार उसकी खुद की उपस्थिति का आकलन करने का एक तरीका है, साथ ही आपको अच्छी तरह से देखने का भी, बिना किसी घूरने के जोखिम के। तो अगली बार जब आप किसी महिला को परावर्तक सतह में झांकते हुए देखें, तो इसे महज घमंड के रूप में न लिखें। हो सकता है कि वह आपको देखने के लिए दर्पण का इस्तेमाल कवर के रूप में कर रही हो। 14. जब आप नहीं देख रहे हो तो अपनी बाहों की जांच करना। सज्जनों, अगर आप जिम में समय बिता रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके प्रयासों पर किसी का ध्यान न गया हो। जब कोई महिला आपकी बाहों की तारीफ करने के लिए कुछ समय निकालती है, जब उसे लगता है कि आप नहीं देख रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह आपकी काया से प्रभावित है। जब आप कुछ पाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो वह अपनी नजर आपके बाइसेप्स पर टिकाए रख सकती है, या जब आप स्ट्रेच करते हैं, तो आपके कंधों की प्रशंसा कर सकती है। यह विवेकपूर्ण प्रशंसा आपके मर्दाना रूप को बहुत आगे या स्पष्ट किए बिना देखने का उसका तरीका है। ऐसा लगता है कि वह दृश्य का आनंद ले रही है, बाद में देखने के लिए एक मानसिक छवि संग्रहित कर रही है। इसलिए अगर आप किसी महिला की नजरों को अपनी बाहों पर भटकते हुए पाते हैं, जब आप नहीं देख रहे होते हैं, तो इसे एक तारीफ के रूप में लें। आपकी कड़ी मेहनत निश्चित रूप से रंग ला रही है और वह इस पर ध्यान दे रही है। 15. तिरछी नजर। कभी-कभी सबसे शक्तिशाली नजरें वे होती हैं, जो लगभग अदृश्य होती हैं। जब कोई महिला आपको एक त्वरित तिरछी नजर देती है, तो यह दिलचस्पी का एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेत है। यह संक्षिप्त, छिपी हुई नजर अक्सर एक हल्की मुस्कान या आंखों को नीचे झुकाने के साथ होती है, जैसे कि वह बहुत स्पष्ट हुए बिना एक झलक चुराने की कोशिश कर रही हो।
यह सीधे आंख से संपर्क के जोखिम के बिना आपको परखने का एक तरीका है और यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकता है। ये तिरछी नजरें अक्सर फ्लर्टिंग के अधिक स्पष्ट रूपों का अग्रदूत होती हैं, पानी का परीक्षण करने और आपकी प्रतिक्रिया का आकलन करने का एक तरीका। इसलिए यदि आप खुद को कुछ तिरछी नजरों के शिकार पाते हैं तो उन्हें अनदेखा करने में जल्दबाजी न करें। वह निश्चित रूप से दिलचस्पी रखती है और वह बस आपके कदम उठाने का इंतजार कर रही है। 16 सूक्ष्म शारीरिक कोण परिवर्तन। यह आश्चर्यजनक है कि केवल शारीरिक भाषा के माध्यम से कितना कुछ संप्रेषित किया जा सकता है। जब कोई महिला आपसे बातचीत के दौरान अपने शरीर के कोण को सूक्ष्मता से बदलती है तो यह संकेत है कि वह व्यस्त और चौकस है। वह अपने कंधों को थोड़ा आपकी और आज के इस वीडियो में बिना अच्छी शक्ल सूरत और बिना पैसों के किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हैं जो आपको पूरे YouTube पर और कोई नहीं बताएगा। हम बात कर रहे हैं आपकी मस्कुलिन एनर्जी के बारे में। मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर की एक ऐसी एनर्जी है जो किसी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ऐसी चीजों के बारे बताने जा रही हैं जिससे लड़कियां आपके चारों ओर मक्खियों की तरह मंडराने लगेंगी। आपको लड़कियों को अट्रैक्ट करने की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी, बल्कि लड़कियां ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। हम आपको लड़कियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो सीक्रेट बताने जा रहे हैं वो आपको पूरे YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपको एक ऐसी बोनस टिप्स भी बताने वाले हैं जो 100% इफेक्टिव है और इस ट्रिक की मदद से आपके ऊपर लड़कियों का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लड़कियां हमेशा लड़कों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी को खोजती हैं जो क्वालिटी अगर किसी लड़के के अंदर लड़कियों को दिख जाती है तो लड़कियां उसके पीछे पागल सी हो जाती हैं। उसे पाने के लिए वो सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहती है। मस्कुलिन एनर्जी वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी की कवरेज, इंडिपेंडेंस और आपकी स्ट्रेंथ और पावर को दिखाता है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। इस वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के उन मस्कुलिन थिंग्स के बारे में जानते हैं जो एक वुमन को बहुत ही तेजी से आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, जिसे किसी लड़के के अंदर देखते ही लड़कियां उसके लिए पगला सी हो जाती हैं। नंबर 1, सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है। सीधे सीधे कहें तो आप चीजों को किस तरह से समझते हैं, हंसी मजाक करते हैं या नहीं, लोगों पर अपना प्रभाव कैसे छोड़ते हैं, इसी को हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ज्यादातर लड़कियां उस तरह के लड़कों को ही पसंद करती हैं जिनकी सोच मैच्योरिटी टाइप की होती है, जो थोड़े मिलनसार होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपकी मस्कुलिन एनर्जी सीधे आपस में जुड़े होते हैं और जैसे ही आप अपने करियर और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब आपकी मस्कुलिन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। आपका हंसी मजाक करने का तरीका लड़कियों को आपकी तरफ बड़ी ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। कल्पना कीजिए आप किसी खास व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप उनके सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मगर माहौल थोड़ा सा अजीब है। अचानक आप एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मनोविज्ञान की माने तो किसी को हंसाने पर उसके दिमाग में डोपामाइन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है जो उसे खुशी और उत्साह का एहसास दिलाता है, जिससे सामने वाले पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वह आपके बारे में घर जाकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, इसलिए लड़कियों के सामने कभी भी सीधे साधे और गुमसुम होकर ना रहे। लड़कियां गुमसुम रहने वाले और सीधे लड़कों को कभी भी अपने जीवन साथी के रूप में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखना। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस एक ऐसा टूल है, एक ऐसी मस्कुलिन पावर है जो आपके अंदर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस की मदद से आप किसी भी लड़की के अंदर आपके लिए अट्रैक्शन जनरेट कर सकते हैं। हाल ही में कनाडा में एक एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि इस दुनिया में जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनमें से 80% लड़कियां लड़कों के कॉन्फिडेंस से ही इम्प्रेस होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस जितना होता है आप लड़की को उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर उस पर अच्छा रिस्पांस आया तो हम इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। नंबर 3, फिजिकल फिटनेस, जिसे लड़कियां हर एक लड़के में फाइंड करती हैं और फिजिकल फिटनेस आपको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। फिजिकल फिटनेस आपकी वो चीज है जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी बॉडी के पावर की एबिलिटी और आपकी एफिशिएंसी को शो करती है, जिससे लड़कियां ना चाहते हुए भी और भी ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होने लगती हैं। और ये 100% फैक्ट है जो रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है। हमारी बॉडी में 1000 प्लस हार्मोन एक्टिव स्टेज में रहते हैं एंड उसमें से फिटनेस हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। चलिए अब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस, मस्कुलिन एनर्जी लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगती है? लड़कों में वे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड साइंटिस्ट 1,000,000% लड़कियां ऐसे लड़कों को अपने पार्टनर के रूप में चुनती हैं जो उनको फिजिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी कारण से ज्यादातर लड़कियां आपकी फिजिकल फिटनेस मस्कुलिन से आपसे आकर्षित होती हैं और ये बात लड़कियां कभी किसी लड़के को सीधे नहीं बताती हैं। अगर आपको फिटनेस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में ज्यादा रिस्पांस आएगा तो हम उस पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। नंबर 4, लड़कियां हमेशा सबसे पहले आपके बॉडी पोस्चर को ही नोटिस करती हैं क्योंकि आपके बॉडी पोस्चर से बहुत कुछ पता चलता है, जैसे आपकी समझ कैसी है,
आपकी कम्युनिकेशन कैसी है इत्यादि। बॉडी पोस्चर एक ऐसी मास्कुलिन चीज है जो लड़कियां हमेशा लड़कों में नोटिस करती हैं और आपका बॉडी पोस्चर ही लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन वो कभी भी इस बात को किसी को बताते नहीं है। एक महिला किसी भी पुरुष को तभी उसके जीवन साथी के रूप में चुनती है जब वह उस लड़के के अंदर वो मास्कुलिन चीज को देखती है, और ये मास्कुलिन चीज आपके बॉडी पोस्चर से होती है जिसे लड़कियां दोस्त करने लगती हैं, क्योंकि अगर आपका बॉडी पोस्चर सही है तो आप और भी ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जिससे आपकी मस्कुलिन स्ट्रेंथ और भी ज्यादा एनहांस दिखेगी, जो लड़कियों को मधुमक्खियों की तरह आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए इसे हम आपको शार्ट में बता दे रहे हैं। देखो, हमेशा अपनी पीठ और कंधों को सीधा रखें। आपकी सीधी पीठ होना आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। हमेशा अपनी बाहों को खुली रखें, इन्हें क्रॉस न करें। यह आपके खुलेपन और स्वागत के भाव को दर्शाता है। थोड़ा आगे की ओर झुककर बात करें, यह आपके ध्यान और रुचि को दिखाता है। हमेशा अपने हाथों को जेब में रखने से बचें। चेहरे को यहाँ वहाँ छूने या बालों के साथ खेलने जैसी फालतू की चीजें करने से हमेशा बचें। लड़की की आंखों में संपर्क बनाए रखें, यह आपके अंदर के आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है। हमेशा अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट को जरूर रखें, यह खुशी और सकारात्मकता दिखाता है। बेवजह कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने की कोशिश भी न करें। थोड़ा धीरे बोले, ज्यादा तेज चिल्ला चिल्ला कर बात न करें, इससे आप शांत और नियंत्रित दिखते हैं। सिंपल दिखने की कोशिश करें। अगर आप घबराए हुए या बनावटी दिखेंगे तो लड़की समझ जाएगी। यही है आपका सही बॉडी पोस्चर जो लड़कियों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।
साइकोलॉजी के अनुसार अपनी पत्नी को उन महिलाओं से दोस्ती न करने दें जिस स्त्री के अनेक पुरुषों के साथ संबंध हो, क्योंकि ऐसी औरतें अत्यधिक कामुक और ज्यादातर चरित्रहीन होती हैं, जिससे आपकी पत्नी भी गैर मर्द से संबंध बना सकती है। साइकोलॉजी के अनुसार औरतें हर चीज पर काबू कर सकती हैं, लेकिन अपने इमोशंस पर नहीं। वह भी अगर किसी मर्द से शिद्दत वाला प्यार करने लग जाएगी तो फिर उन्हें भी दुनिया से फर्क नहीं पड़ेगा। वह भी मर्द की तरह ही प्यार में पागल हो सकती है, क्योंकि वह मर्दों से ज्यादा इमोशनल होती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप प्यार में होते हैं तो सेक्स प्यार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह हर इंसान की जरूरत है, और यदि आप जरूरत पूरा नहीं करते हैं तो प्यार के मायने कम होने लगते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। एक औरत सेक्स पर तभी नियंत्रण खोती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। बढ़ती उम्र बाल झड़ने का एक ऐसा कारण है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालों का विकास धीमा होने लगता है और हेयर फॉलिकल्स बालों को उत्पादन रोक देते हैं, जिससे बाल न केवल पतले हो जाते हैं बल्कि इसकी लेंथ भी कम होती जाती है। बालों पर बहुत ज्यादा कलरिंग, पमिंग और जरूरत से ज्यादा हीट स्टाइलिंग से बालों की जड़ों को नुकसान होता है। इससे समय से पहले बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हेयर स्टाइलिंग के मामले में देखभाल और संयम बरतने की जरूरत होती है। अगर मनुष्य अपने आप पर काबू पा लेता है तो वह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और शानदार जीत होती है। एक स्त्री हमेशा ये चाहती है कि संभोग के समय उसको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। किसी भी काम को करने में अगर आप अपने स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं तो उस काम को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का आत्मसम्मान उसके लिए सब कुछ होता है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं न बोलने की जरूरत पड़े तो बेहिचक बोलना सीखें। संभोग में प्रेम होना अनिवार्य है, स्नेह होना अनिवार्य है। स्त्री को बहुत प्यार करने वाला पुरुष चरम सुख तक ले जाता है। संभोग में भी अध्यात्म है अगर कलात्मक ढंग से किया जाए। चाहत होनी चाहिए कि देह दिव्य है, उसे समर्पण से भोगना है। सहलाना ऐसे जैसे मखमल हाथ में हो, क्योंकि नोचना नहीं चाहिए। नोचने का काम एक वहसी करता है, दरिंदा करता है, और ऐसे ही लोग बलात्कारी होते हैं। संभोग पर एक विशेष कॉलम लिखा जाना चाहिए जहाँ स्त्री पुरुष को सुख मिले। जिन लोगों को जिंदगी में ऐसे ही प्यार की तलाश में है उनको एक दुनिया मिल सके, वे एक्सप्लोर कर सकें और सही जानकारी पा सकें, अपने साथी को पहचान सकें। स्त्री जितना प्रेम चाहती है पुरुष भी उतना ही प्रेम चाहते हैं। तब ऐसी स्थिति में श्रद्धा से संभोग होता है। दोनों की एक दूसरे पर श्रद्धा हो, एक माहौल बने, फिर अंधेरे में भी जगमग हो जाएगा। देह के अंदर प्रकाश उठने लगेगा और यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए जीवन को सिद्ध करने के लिए अद्भुत आनंदित कर देने वाला चरम सुख जरूर महसूस करें और ऐसे साथी को एक्सेप्ट करें जो आपसे भावनात्मक लगाव रखता हो। जिंदगी में एक पल का सुख आदमी हो या औरत, दोनों को तन मन और आत्मा से विकसित करता है। बहुत सारे अधूरे काम एक साथ करने से अच्छा है कि हम एक समय पर एक ही कार्य करें, लेकिन बेहतर तरीके से उस कार्य को करें। एक स्त्री ऐसे पुरुषों के साथ हमेशा सेक्स करती है जो उसकी योनि की गर्मी को जल्दी शांत कर देता है। पर्सनल जिंदगी हो या फिर प्रोफेशनल, जब रिश्ते टॉक्सिक होने लगे तो उस वक्त न कहना जरूरी होता है। हर वक्त अपनी तरफ से रिश्ते को सुधारने की बजाय उससे दूरी बना लेना बेहतर होता है। अगर सामने वाले की हर बात मन मारकर माननी पड़े तो न कह देना चाहिए। इससे भले ही कुछ वक्त आपको दुख हो, लेकिन हर रोज के स्ट्रेस से आप बच सकेंगे। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। खड़े होकर संभोग करने से महिलाओं की योनि सख्त और ज्यादा आनंदमय हो जाती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को कोई इमोशनली फूल नहीं बना सकता, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं। इन्हें पता होता है कि कब किसके सामने किस तरह के इमोशन दिखाना है, इसलिए कभी भावनाओं में बहकर कोई गलती नहीं करते, जिसका फायदा उन्हें लाइफ में हमेशा मिलता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे हर किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो लोग उस चीज का बाद में फायदा उठा लेते हैं। इसलिए कोई आपके इमोशन से न खेल, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कामुक महिलाएं वो होती हैं जिन्हें सेक्स पसंद होता है और वह करना चाहती है। यदि आप किसी महिला को एकदम से उत्तेजित करना चाहते हो तो कान के नजदीक और गर्दन पर चुंबन करें, क्योंकि इससे महिला की उत्तेजना बढ़ जाती है और वह चरम सुख की ओर बढ़ने लगती है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से ये लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं और लोगों को खुश करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि दुनिया में हर इंसान को आप पसंद नहीं आ सकते। इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखकर और अपनी कीमत समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई स्त्री अपने में के विरुद्ध सेक्स करती है तो वह अपने साथी से बंधी हुई महसूस करती है। सेक्स पोजीशंस में टी-सिट टाइम एक ऐसा पोजीशन है जिसे महिलाएं बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। अगर उनके हस्बैंड की माने तो इस पोजीशन को ट्राई किए बिना उनका सेक्स सेशन आधा अधूरा होता है। इसे नापसंद करने की महिलाओं की वजह यह है कि उन्हें मल्टीटास्किंग नहीं आती है और यह कभी कभी हाइट की वजह भी बनता है। इसी कारण महिलाओं के लिए यह पोजीशन काफी तकलीफदायक साबित होती है। इस पोजीशन को जितना ज्यादा एंजॉय उनके पति करते हैं उतना उनकी पत्नियां नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह यह भी है कि इसमें ज्यादा मेहनत लगाती है। जैसे ही फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के साथ इस पोजीशन में आती है तो उनकी उत्तेजना खत्म हो जाती है। प्रेम एक गंभीर मानसिक बीमारी है। एक महिला का शरीर एक मंदिर होता है और इसका सम्मान करना चाहिए।
क्या आप जानते हैं? अनार में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शरीर में होने वाले कई तरह के इन्फेक्शन और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द जैसी स्थितियों में भी इसके फायदे देखे गए हैं। अनार का जूस हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके कारण दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दिल के मरीजों को इसका सेवन करना चाहिए। प्रेम के स्पर्श से सभी कवि बन जाते हैं, और यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। एक स्त्री संभोग के समय चरम सीमा पर पहुंचने पर योनि से तरल सफेद पदार्थ छोड़ती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने पार्टनर के साथ हफ्ते में करीब 2 से 3 बार सेक्स करने से शरीर में रोगों व अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, जिससे आप जल्दी बीमारी नहीं पड़ते हैं। इससे शरीर में होने वाले छोटे इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है रिस्पेक्ट। अगर आपका दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी या अन्य आपके साथ प्यार से बात नहीं करता है और आपकी बातों को जरूरी नहीं समझता है, तो उनके लिए आपका रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे रिश्ते में अपना टाइम इन्वेस्ट न करें। जो लोग हमसे प्यार करते हैं और हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, वो हमेशा हमारी गलतियों को उजागर करते हैं और सही गलत समझाते हैं। अगर आपके साथ रहने वाला आपसे सिर्फ वही बातें करता है जो सुनना आप पसंद करते हैं, या फिर आपको खुश करने की कोशिश करता है, तो ये आपके रिलेशनशिप में ईमानदारी की कमी का साइन हो सकता है। ऐसे लोगों से फौरन दूरी बना लें। बार बार सेक्स करने से योनि से वीर्य बाहर आने से स्त्री कमजोर हो सकती है। जो लोग अच्छे सेवक नहीं होते हैं, वो लोग अच्छे मालिक भी नहीं बन सकते हैं। लंबे समय तक सेक्स करने के लिए मर्द को अपने लिंग पर देसी घी की मालिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान एक साथ कई प्रतिभाओं में निपुण नहीं हो सकता है। सेक्स का सबसे ज्यादा फायदा फीमेल पार्टनर को मिलता है। जिन औरतों को पीरियड्स को लेकर कोई नियमित तारीख नहीं होता और उनको दर्द की परेशानी काफी होती है, उनके लिए संबंध बनाने से इन तकलीफों से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। एक पुरुष का लंबा लिंग स्त्री की योनि की गहराई में जाने पर दर्द देती है। एक स्त्री को रात में बिस्तर पर शांत करने के लिए मर्द के पास ताकत होनी चाहिए, ताकि एक स्त्री के काम वासना को शांत कर सके। ऑर्गेज्म के बाद सिर में दर्द होना बहुत ही आम समस्या है। ऐसा सिर और गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन के कारण होता है। माइग्रेन के मरीज इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। आवारा स्त्री का यौवन उसके स्तनों के आकार से पता चल जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंट्रोवर्ट लोग एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये हर स्थिति को शांति और समझदारी से हैंडल करते हैं। इसी शांत स्वभाव की वजह से कभी गुस्सा नहीं करते और न ही अपशब्द बोलते हैं। इसलिए जब लोग इन्हें समझने लगते हैं तो इनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंट्रोवर्ट लोगों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सन अपने मन की बात किसी को बताते नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि कम बोलने का मतलब कुछ छिपाना ही हो। रिसर्च के मुताबिक इंट्रोवर्ट लोग सोच समझकर बोलते हैं। उनकी बात का असर दूर तक होता है। ये लोग जल्दी से किसी को पलटकर जवाब नहीं देते, इसलिए अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वह उनसे बोलकर एक तरफा ही बात करेंगे। संभोग के दौरान स्त्री की योनि अपने मूल आकार से 8 गुना ज्यादा फैल सकती है। कम वस्तुओं के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ी धन दौलत होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप बिना किसी वजह से उदास होते हैं तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि उदासी का सबब सामने आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो दूसरे संकेतों पर गौर कीजिए और अपने को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए। कभी पीठ में और कभी सिर में दर्द होना शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। ये दर्द मानसिक तनाव की वजह से होता है और जल्द ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर लगातार पीठ में दर्द हो रहा है तो ये डिप्रेशन हो सकता है। सेक्स सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, बल्कि शक्ति के बारे में भी है। एकाएक सबसे डर लगना, रोशनी में आने से डरना, ऐसा लगना जैसे सब खत्म होने वाला है। एकाएक पसीना आने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। घर से बाहर निकलने से कतराना, लोगों से मिलने से हिचकना, ये सब संभवतः डिप्रेशन के लक्षण ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो छालों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। आप शहद के साथ कुछ बूंदे नींबू के रस को मिलाकर छालों पर लगाएं, तो इससे आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा दही का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दही में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो जीभ के छालों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक से भरपूर दही के सेवन से पेट की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है और छाले भी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, इससे छाले जल्दी नहीं निकलते हैं। महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना या शर्मिंदगी से नहीं डरती हैं। इंसान का व्यवहार, अभिलाषा, भावना और ज्ञान इन 3 मुख्य स्रोतों से बना होता है। पुरुष सेक्स आधा अधूरा ही करते हैं, लेकिन स्त्री किसी पुरुष के साथ सेक्स करती है तो वह पूरी तरह से सेक्स में डूब कर करती है। इंसानों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए बहुत चिंता की जाए। अगर आपको कब्ज है तो फिर आप रोज पपीता खाएं, क्योंकि पपीता खाने से आपका पेट साफ होता है। बता दें कि लगभग 100 ग्राम पपीते में 43 ग्राम कैलोरी होती है। पपीता खाने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। लगभग 100 ग्राम पपीते में 0.47 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। हवा की तरह सेक्स भी एक ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक आदमी की पहचान इससे होती है कि वह शक्ति के साथ क्या करता है। किसी भी महिला की योनि को जीभ से चाटने से योनि में अधिक उत्तेजना पैदा होती है, जिससे महिला को अत्यधिक आनंद मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार दूध में प्रोटीन और विटामिन के साथ फैट्स भी होते हैं।
इसे ज्यादा लेने से शरीर में फैट की अधिक मात्रा पहुंचने लगती है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कारण भी बन सकता है। चाहे कोई चीज कितनी भी पौष्टिक या स्वास्थ्यवर्धक क्यों न हो, ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और यही बात दूध के लिए भी सच है। मौत सबसे बुरी चीज नहीं है जो इंसान के साथ हो सकती है। संभोग करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। स्त्री के स्तनों को दबाना, योनि को सहलाना और होठों पर किस करना। किसी महिला के पीछे का हिस्सा तब बढ़ता है जब वह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगती है। 3 वर्ग के लोग होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और लाभ के प्रेमी। सिटिंग सेक्स पोजीशन, इस सेक्स पोजीशन में महिला पार्टनर पुरुष पार्टनर की गोद में बैठकर सेक्स करवाती है। महिला साथी को पुरुष की गोद में बैठना चाहिए और खुद को थोड़ा नीचे झुकना चाहिए और अपने हाथ से मर्द के लिंग को सहारा देकर संभोग करने में मदद करनी चाहिए। महिला और पुरुष दोनों जोड़ों को एक दूसरे के चारों ओर अपने पैर लपेटने चाहिए और सेक्स का आनंद लेना चाहिए। इस स्थिति में आप धीरे धीरे सेक्स कर सकते हैं और जितना चाहे उतना ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक सेक्स और अंतरंगता का आनंद लेना चाहते हैं तो यह सेक्स पोजीशन आपके लिए बेहतर है। इसमें बैठे बैठे दोनों पार्टनर सेक्स कर सकते हैं। हालांकि इस तरह से संभोग करते समय यह स्थिति आरामदायक नहीं होती है, लेकिन इसे करने के लिए दोनों पार्टनर को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में सेक्स करते समय साथी एक दूसरे को देखने, हर मूव को एंजॉय करने, अपने साथी के शरीर को टच करने और खुद या उसे खुद को सहलाने की क्षमता रखते हैं। सिटिंग सेक्स पोजीशन में आप योनि सेक्स या ओरल सेक्स कर सकते हैं। एक साथी अपने या अपने साथी के मूव्स को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन तेजी से सेक्स करने के लिए यह सेक्स पोजीशन ठीक नहीं मानी जाती है। इस पोजीशन में स्त्री अपनी आवश्यकता अनुसार पुरुष का लिंग अपने अंदर ले सकती, जिससे वह खुद भी और अपने पार्टनर को भी संतुष्ट कर सकती है और संतुष्ट हो भी जाएगी। सीटिंग और चेयर पोजीशन, सेक्स पोजीशन के दौरान आपके पुरुष साथी को कुर्सी पर आराम से बैठना होता है और महिला पुरुष की गोद में बैठती है। इस पोजीशन में महिला साथी को पुरुष साथी की ओर पीठ करके बैठना पड़ता है। पुरुष साथी अपने हाथ की मदद से आपके कुल्हे उठाकर संभोग करता है। यह सेक्स पोजीशन अल्टरनेटिव डॉगी स्टाइल की तरह है, जिसमें आप सेक्स की गहराई से आनंद ले सकते हैं और लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर सेक्स करने से आप बिना किसी समस्या और थकान के लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जिन स्त्रियों के दोनों स्तन छोटे होते हैं वह स्त्री संभोग के लिए जल्दी उत्तेजित नहीं होती है। जो महिला कुत्ते की तरह संभोग करवाती है वह महिला बहुत कामुक होती है। स्त्री के स्तनों को सहलाना और मसलना संभोग क्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार कॉफी में कैफीन की मात्रा आपके शरीर को फ्रेश महसूस करवाती है। इससे आप रात को लंबे समय तक जागते रहते और नींद न पूरी होना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लंबे समय तक रात को कॉफी पीने से हृदय रोगों की संभावना भी बढ़ सकती है, जैसे कि उच्च रक्तचाप और अटैक का खतरा। इसीलिए रात को कॉफी के सेवन से बचना चाहिए। रात को अच्छी नींद पाने के लिए कॉफी का सेवन न करना अच्छा रहेगा, लेकिन आप फिर भी पीना चाहते हैं तो सोने से कम 2 घंटे पहले कॉफी पिए, ताकि जब आप सोने जाएं तब तक इसका प्रभाव थोड़ा कम हो चुका हो। जब आप किसी महिला के साथ संभोग करने के लिए तैयार होते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि संभोग के दौरान महिलाओं का स्तनों का आकार बढ़ जाता है, जिन्हें स्पर्श करने पर पुरुषों को काफी आनंद आता है। 3% की महिलाएं अपने साथी के लिंग की लंबाई और मोटाई से पूरी तरह संतुष्ट होती हैं। सीमेन प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो पुरुषों में 14 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है और जिंदगी भर चलता है। सीमेन का प्रोडक्शन दिन में 24 घंटे होता रहता है, पर इसके लिए किसी तरह की शारीरिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि सीमेन प्रोडक्शन में फिजिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है या उससे कद छोटा हो जाता है। ये ठीक वैसा प्रोसेस है जैसे सलाइवा का प्रोडक्शन होता रहता है, पर उससे हमारे शरीर की एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पुरुष सुहागरात के दिन औरत के हाथों से दूध पीते हैं तो ऐसे पुरुष पूरी रात संबंध बनाने का मजा लेते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार भूखे पेट की तुलना में खाना खाने के बाद लोग ज्यादा अच्छे से संभोग करते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ अंततः विपरीत चीजों के जुड़ने से बनता है। पुरुष और महिलाएं भी ऐसा ही करते हैं। उनके जुड़ने का मुख्य धारा होती है सेक्स। कुछ लोग 7 दिनों में एक बार सेक्स करते हैं। वही खाना खाने के बाद हमेशा 1 या 2 घंटे के बाद ही सेक्स करना चाहिए। इससे खाया हुआ खाना भी पच चुका होता है। साथ ही खाना खाने के बाद थोड़ी सैर भी कर लेनी चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करते समय अगर स्त्री आपके गुप्तांग को अपने मुंह में न ले रही हो तो उसके स्तनों को चूसे, जिससे वह और ज्यादा उत्तेजित होकर आपके गुप्तांग को अपने मुंह में ले लेगी। संभोग करने से पहले चॉकलेट खाने से उत्तेजना बढ़ जाती है। एक औरत के गुप्तांग पर पुरुष का गुप्तांग रगड़ने से ही पुरुष का पानी निकल जाता है। कुछ महिलाओं को चरम सुख की प्राप्ति केवल उनके स्तन और उनके गुप्तांग को चाटने से हो जाती है। संभोग के दौरान जिस स्त्री का पेशाब निकल जाए तो समझो उस स्त्री की योनि बहुत ही श्रेष्ठ हो सकती है। योग अभ्यास से कोर्टिसोल के स्तर को कम करके शरीर में तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। तनाव बढ़ने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं और यौन इच्छा में कमी उनमें से एक है। योग समग्र यौन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। सेक्स को केवल लिंग योनि संभोग माना जाता है या केवल विषम लैंगिक जोड़े शामिल हैं। अगर बात की जाए कि मनुष्य ज्यादा देर तक सेक्स क्यों नहीं कर पाते तो इसका मुख्य कारण है शारीरिक कमजोरी और स्टैमिना की कमी और 2 विपरीत लिंग के मिलन से होने वाले घर्षण से जल्दी उत्तेजना होने के कारण जल्दी स्खलन हो जाता है, जो कि यह सामान्य है। अगर कोई औरत किसी पुरुष के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बनाती है तो समझ जाना कि वह उस मर्द से बेहद प्यार करती है। मानव के लिए
खून की विशेषता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ए ब्लड टाइप वाले लोग संवेदनशील, सहयोगी, भावुक और चतुर होते हैं। वे बहुत धैर्यवान, वफादार और शांति पसंद करने वाले होते हैं और इस तरह किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं करते। लेकिन कभी कभी ये लोग अति संवेदनशील हो जाते हैं। वे समाज द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ना और शिष्टाचार और सामाजिक मानकों की परवाह करना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग निर्णय लेने के लिए अपना समय लेते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में संगठित भी होते हैं, लेकिन मल्टीटास्क नहीं कर सकते। उन्हें साफ सुथरी और सही जगह पर चीजें पसंद हैं। यही वजह है कि ओसीडी वाले कई लोग ए ब्लड टाइप में आते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक स्त्री अपनी योनि को खोलकर पुरुष का गुप्तांग तभी डलवाती है जब उस स्त्री के गुप्तांग में अधिक गर्मी होती है। किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक मर्द के लिए खूबसूरत पल होता है। अमेरिका में ज्यादातर संभोग बेडरूम में नहीं बल्कि कार में होता है। मनोविज्ञान के अनुसार औरतों को भी मर्द चाहिए होता है। जिन मर्दों को यह लगता है कि सिर्फ हवस की भूख उनके अंदर ही है या फिर सिर्फ उन्हें ही औरतों की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने अगर दो अलग अलग जेंडर के लोगों को बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बस इसी को समझ लो कि हर औरत भी मर्द चाहती है, लेकिन मैंने बात की है एक मर्द की। मगर अफसोस आज इस कलयुग में मर्दों के भेष में सिर्फ भेड़ियां घूम रही हैं। इसलिए औरतों को भी मर्द से चिढ़ होती है और इसीलिए वह हमेशा चाहती है कि वह सिंगल रहे, क्योंकि गलत मर्द के चक्कर में पड़कर वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार हर औरत को मर्द की जरूरत होती है जो उनकी इज्जत करे, जो उनको समझे, जो उनको सहमति दे और उनको संभाले। अगर ऐसी मर्दानगी आपके अंदर है तो फिर कोई औरत आपको कभी नहीं कहेगी। औरत खूबसूरती नहीं देखती है, औरतें तो खूबसूरती से ज्यादा दिल को देखती हैं। औरतों में मर्दों जैसा नहीं होता है। हाँ, एक बार वह हैंडसम लड़के को जरूर ठुकरा देंगे, मगर जो दिल का अच्छा है उसे कभी नहीं ठुकरा सकती, क्योंकि औरत का दिल कोमल होता है। उनके अंदर असीम प्यार होता है। बस देर है सिर्फ उसे जगाने की, और एक बार उसके दिल में किसी मर्द के लिए प्यार जाग गया तो वह उस प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। आदमी दिखने में वह कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वह दिल का काला हुआ तो किसी भी हाल में वह औरतों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के साथ साथ अपने दिल को खूबसूरत बनाना सीखो। यदि यह दोनों खूबसूरत रहा तो हर औरत आपकी ओर आकर्षित होगी। औरतों को जीता नहीं जा सकता। मैं आपकी एक और गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। औरतें जो होती हैं ना, उनको जीता नहीं जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पैसे से, ताकत से या फिर गरूर से किसी भी तरीके से औरत के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर लोगे तो ये कभी नहीं होगा। साइकोलॉजी कहती है यदि औरत किसी मर्द के साथ रहकर भी खुश नहीं है, जिसको वो पसंद ही नहीं करते, तो उसे वो क्या देगी? अगर अपने उससे जबरदस्ती ले भी लिया तो वो लेना या न लेना एक समान हो जाता है, चाहे फिर उसका जिस्म हो या कुछ और, वही देखा जाए। अगर औरत अपनी मर्जी से दिल से किसी मर्द को चाहती है तो वो खुशी खुशी उसे सब कुछ देगी जो शायद आज तक आपको भी न दिया हो। अगर आप चाहते हो कि औरतें आपको पसंद करें तो उन्हें अपने प्यार और विश्वास से ही जीतो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता या फिर नहीं करना चाहता तो चाहे आप कितना भी दम लगा लो, उसे अपना नहीं बना पाओगे। मनोविज्ञान के अनुसार इमोशनल होना औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई मर्द की कमजोरी पूछे तो सच बताओ, 1000 कमजोरियां एक सेकंड में सामने आ जाएंगी, लेकिन बात जब औरत की आती है तो पासा उल्टा पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक ऐसी कमजोरी होती है औरतों में जिसका फायदा मर्द बड़े अच्छे से उठाते हैं, और वह कमजोरी है इमोशनल होना। औरतें बहुत इमोशनल होती हैं, उनका दिल बहुत मुलायम होता है, और यही वजह है कि कई सारे लीचड़ मर्द उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके साथ उल्टा सीधा काम करते हैं और बाद में उन्हें फंसाकर बर्बाद भी कर देते हैं। औरतें भी नौजवानों से आकर्षित होती हैं। जिस तरह आप एक मर्द होकर जवान लड़कियों से आकर्षित महसूस करते हो या फिर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक उसी तरह नौजवानों से औरतें भी आकर्षित होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि वह अपने इस आकर्षण को कंट्रोल करना जानती है, जबकि मर्द कंट्रोल नहीं कर पाते और बयान कर देते हैं। नौजवानों से आकर्षित होना यह हर औरत पर लागू होती है। शायद वह दिखाती नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें किसी तरह के आकर्षण का एहसास नहीं होता है। वह भी आकर्षित होती है। जिस मर्द का शरीर अच्छा हो, दिमाग तेज हो और जिसका एटीट्यूड सुंदर हो, ऐसे मर्द से तुरंत औरतें जल्दी आकर्षित होती हैं। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सिर्फ मर्दों को ही आकर्षण हो सकता है। जो मर्द औरत को इज्जत देते हैं वह उसकी हो जाती है। सिर्फ इज्जत देने और प्यार जताने से ही किसी औरत के दिल में आप अपने लिए जगह बना सकते हो। प्यार भरे रिश्ते में संभोग एक अहम भूमिका अदा करता है। सेक्स दो जिस्मों का मिलन ही नहीं बल्कि मन का मिलन भी है। सेक्स की ज्यादा हवस इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अनियमित रूप से संभोग करना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। एक स्त्री गैर मर्द के साथ संभोग तभी करेगी जब उसकी योनि असंतुष्ट होगी। क्या आप जानते हैं, एक स्त्री की योनि से निकला वीर्य आपके चेहरे के दाग धब्बे को मिटा सकता है। किसी स्त्री के उत्तेजित होने पर सेक्स का समय और अधिक बढ़ जाता है। सेक्स करने में पार्टनर की मंजूरी भी बहुत मायने रखती है। अगर पार्टनर सेक्स के लिए तैयार नहीं है तो आप उससे इस बारे में बात करें और सेक्स के लिए मनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके सेक्स करने की इच्छा में बढ़ोतरी भी होगी और आप संभोग का भरपूर तरीके से आनंद भी उठा सकेंगे। पार्टनर को सेक्स के लिए राजी करने के लिए आप उससे प्यार भरी बातें और अंगों पर चुंबन के जरिए भी सेक्स की शुरुआत कर सकते हैं। जिस स्त्री की योनि अधिक चौड़ी और गहरी होती है वह उतना ही ज्यादा कामुक होती है। एक औरत संभोग करने से मना तभी करती है जब उसकी योनि की ज्वाला शांत हो।
स्त्री की कामुकता बढ़ जाएगी अगर उसकी योनि पर लिंग को स्पर्श करवाते हैं। मोटी औरत के साथ संभोग करने से पुरुषों का लिंग जल्दी सख्त हो जाता है। 19 साल की उम्र ऐसी उम्र है जिसमें अधिकतर लोग पहली बार सेक्स करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 71% औरतें अपने स्तनों के आकार से खुश नहीं हैं। लंबे समय तक सेक्स न करने से पुरुषों के लिंग की शक्ति कमजोर होने लगती है। एक स्त्री की कामुकता उस वक्त बढ़ जाती है जब उसकी योनि को जीभ से चाटा जाता है और स्तनों को हाथ से सहलाया जाता है। किसी भी स्त्री के साथ लंबे समय तक संभोग करना स्त्री को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि औरत के साथ भूखे पेट संभोग करने से वीर्य पतन बहुत देर में होता है। एक स्टडी में यह सामने आया कि ज्यादातर मर्द और औरतें रात के 10 बजे को सेक्स के लिए बेस्ट समय मानती हैं। सिंगल्स इन अमेरिका नाम की स्टडी में 65% पुरुष और 59% महिलाओं ने यह माना था कि उनके लिए रात को 10 बजे का समय संभोग के लिए ज्यादा उचित है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि 10 बजे ऐसा समय होता है जब आमतौर पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने दफ्तर व घर के काम से फुर्सत हो जाते हैं और फिर वे खुद के लिए समय निकालते हैं। ऐसे में रोमांटिक पल भी शेयर किए जाते हैं जो सेक्सुअल प्लेजर साथ लाता है। जिस औरत में सेक्स की ज्यादा आग होती है वह उतनी ही ज्यादा बुद्धिमान और रचनात्मक होती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक सुंदर स्त्री के साथ सेक्स करने से पुरुषों को बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होता है। अगर आप किसी स्त्री के साथ सोना चाहते हैं तो आपको उसे यौनिक दृष्टि से आकर्षित करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स करते वक्त पुरुष और स्त्री दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक अध्ययन बताता है कि नियमित यौन गतिविधि सिर दर्द की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने में मदद कर सकती है। 1000 प्रतिभागियों में से एक अध्ययन में पाया गया कि एक हफ्ते के दौरान सेक्स करने वाले 60% माइग्रेन रोगियों ने अपने लक्षणों में सुधार की सूचना दी। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि सेक्स क्लस्टर सिर दर्द जैसी स्थितियों से काफी राहत प्रदान कर सकता है। पुरुष अपने से कम उम्र की औरत और औरतें अपने से अधिक उम्र के पुरुष को ज्यादा पसंद करती हैं। हर किसी का शरीर एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग होता है। ऐसे में कई पुरुषों के लिंग में हल्का टेढ़ापन नेचुरली हो सकता है। यदि आपका लिंग शुरू से ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासतौर पर यदि आपको इससे कोई दर्द न महसूस हो। इसलिए इसके बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है। यदि लिंग में टेढ़ापन 30 डिग्री से ज्यादा नहीं है, न ही सेक्स के दौरान इसके कारण दर्द का अनुभव होता है और न ही इसका टेढ़ापन बढ़ रहा है, तो यह बिल्कुल नॉर्मल है। सेक्स से जुड़ा एक सपना देखते हैं जिसके बाद आपको लगता होगा कि यह सिर्फ एक सपना नहीं सच है। सेक्स से जुड़े सपने, सेक्स ड्रीम्स आना और उनका सच लगना कोई अजीब बात नहीं है। यह आम जिंदगी का ही एक हिस्सा है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई लोग ऐसे सपने, सेक्सी सपने भी देखते होंगे जिसमें वे अपने पार्टनर की जगह किसी और के साथ सेक्स कर रहे होते होंगे। यह भी बिल्कुल आम बात है। आप सोचते होंगे कि इस तरह के सपने आखिर क्यों आते हैं। हर सपना आने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हम अक्सर जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसी के बारे में सपने भी देखते हैं। एक स्टडी के अनुसार महीने में 7 बार से अधिक सेक्स करने पर हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जो औरतें अपनी नाभि को ढक कर नहीं रखती, ऐसी औरतें बहुत ही ज्यादा कामुक और सेक्सनुमा होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक पॉर्न एडिक्शन के कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ इफेक्ट्स तो लंबे समय तक परेशान करते हैं। कई रिसर्च बताती है कि पॉर्न एडिक्शन से शराब और ड्रग्स की लत लग जाती है तो कई बार जुए की भी आदत हो जाती है और इनसे आसानी से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। इतना ही नहीं, पॉर्न एडिक्शन दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। एक बार पॉर्न एडिक्शन लग जाए तो शख्स का लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाता है। शख्स दिन भर मोबाइल पर ही एक्टिव रहता है। ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिताने और सामाजिक तौर पर लोगों से दूर होने पर वह डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। यह नकारात्मक प्रभाव सिर्फ पॉर्न एडिक्टेड शख्स को ही नहीं, उसके आसपास मौजूद लोगों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। पॉर्न एडिक्शन सिर्फ मेंटली और सोशली ही नहीं, बल्कि इससे एक कदम आगे पैसों की तंगी भी ला देता है। इस आदत में शख्स जरूरी चीजों पर पैसे खर्च न कर पॉर्न को देखने के लिए पैसे उड़ाता है। इससे धीरे धीरे उसका बिहेवियर गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि संभोग के दौरान महिला की योनि से आवाज आने लगे तो समझ ले कि महिला संतुष्ट है। एक रिसर्च बताती है कि औरतें 45 साल की उम्र तक लगभग 3000 बार सेक्स करती हैं। जायफल भारतीय किचन में मिलने वाला एक बहुत ही आम मसाला है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही जबरदस्त हैं, खासतौर पर ऐसे पुरुषों के लिए जो यौन संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन इसका सेवन बहुत ही नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। यूनानी दवाओं में भी पुरुषों के सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। जायफल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे लिंग में तनाव की परेशानी खत्म हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला एथेनॉल एक्सट्रैक्ट सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सुधारने में मददगार होता है। पुरुष और महिला के बीच होने वाली सेक्स की क्रिया पुरुष और महिला के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अपने आधे स्तनों को खुला रखने वाली महिलाएं पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं, ताकि महिला उस पुरुष के साथ संबंध बना सके। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष महिला से बात करते वक्त उनके स्तनों को देखता है तो वह महिला हमेशा उस इंसान से नफरत करने लगती है। संभोग के समय लिंग को लोहे जैसा बनाने के लिए रोज सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर पीना चाहिए। जब पुरुष संभोग करते समय महिला की योनि चाटता है तब ऐसे में महिला की कामोत्तेजना चरम शिखर पर पहुंच जाती है और उसे अत्यधिक आनंद मिलता है। जिस स्त्री को सेक्स नहीं मिलता
वह हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचती और बात करती है। ठीक वैसे ही जिसके पास पैसे नहीं होते वह हमेशा पैसों की ही बात करता है। अगर पुरुष अपने हाथों से स्त्री के होंठ, गाल और स्तनों को सहलाते हैं तो इससे स्त्री में कामोत्तेजना जल्दी पैदा होती है और वह जल्दी सेक्स के लिए तैयार हो जाती है। अगर मर्द संभोग करते समय औरत को नशीली आंखों से देखता है, आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है, हल्के हाथों से औरत का शरीर सहलाता है तो औरत जल्दी स्खलित हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। उनकी एक गलती अनचाहे गर्भपात की वजह बन सकती है। शायद इसी वजह से लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से परहेज करते हैं। कई लोग प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक मानते हैं। ज्यादातर लोग प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद पार्टनर के साथ सेक्स करना बंद कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी महिला को जोश में आने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है और वही उसे सेक्स क्रिया में संतुष्ट होने के लिए 20 से 30 मिनट का समय लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री को घोड़ी बनाकर संभोग करता है तो ऐसे में स्त्री की काम तेजना चरम शिखर पर पहुंच जाती है और उसे संभोग में ज्यादा आनंद आता है। एक रिसर्च के अनुसार बार बार संभोग करने के बाद पुरुष को स्खलित होने में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसके विपरीत स्त्री पिछली बार के संभोग की अपेक्षा अतिशीघ्र चरम सुख को प्राप्त कर लेती है।